Hi, welcome back to the Armchair Sociologist. Today we are going to study about the remaining non-positivist methodology. This is the lecture 3 in the methodology series, and it is a part 2 of non-positivist methodology. In this lecture we are going to see critical social science methodology, feminist methodology, postmodern methodology. Briefly we are going to see few other methodologies and also the merit and demerits of the positivist and non-positivist methodology. The section on ethno-methodology was becoming too big, so I thought it needs its separate lecture. So I prepared a separate lecture for ethno-methodology. So for today, we'll begin with the critical social science methodology. Before we begin, it will be prudent that if you go through the other lectures, especially in the methodology series before this, the non-positivist one especially, and as I have explained in all my lectures before, that I am using the Harlem-Bosch book, especially the Harlem-Bosch Orange book, to create a foundation in sociology which can be used for civil service examinations, UPSC and other civil service examination. For this section, especially for the methodology part, I am relying heavily on the Harlem-Bosch blue book, except the ethnomethodology one. For that, we will be using the orange book, because in that book it has been given in very much detail with respect to ethnomethodology. So let's begin the critical social science methodology. Critical social science methodology. You can see from page number 898 in Harlem-Bosch blue book. The work has been done by Lee Harvey. And what are the main points? First point is nature. What is the nature of critical social science research? Critical social science embraces all those approaches in sociology that aim to be critical of society in order to facilitate social change. So, this type of research is not content with just describing or analyzing society. Its main goal is to challenge the injustices, highlight power imbalances, and promote transformation in society. It is a kind of activist research where the researcher plays a role in initiating change. For example, Feminist researchers highlighting the gender pay gap in Indian corporate sectors aim to bring policy changes, not just document inequality. It goes beyond simply criticizing. What does it say? It says critique is an integral part of the process. So criticism here is not about fault finding. Uh, it is about constructive analysis, understanding the roots of oppression or inequality, and pushing towards alternatives. For example, Ambedkarite scholars who analyze caste system critically to create new frameworks of social justice are engaging in this type of critique. It says knowledge can never be separated from values. Unlike positivist approaches that seek value free objectivity, critical social science accepts and embraces values. Researchers bring their own ethical stance to the study, especially when working with oppressed or marginalized groups. Now, imagine a sociologist working on manual scavenging in India. Cannot be neutral. The person cannot be neutral. Their very involvement carries moral urgency. Now, we come to examples of critical social science research. Example of feminist studies on housework. Work of Karl Marx and Paul Willis study of working class lads in the education system. ये एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हैं. ये एग्जाम्पल्स देने से आपका आंसर में काफी डेप्थ आएगा. सो दीज आर द क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग रिसर्च टू क्वेश्चन पावर एंड inequality. Feminist studies show how housework is unpaid and unrecognized labor. Feminist sociologists have critically analyzed the seemingly mundane and invisible labor done by women within households. Housework is not just a private matter,
but a site of gender inequality and economic exploitation. Feminist research reveals how housework contributes to capitalism by reproducing the labor force, meaning raising children, caring for workers without receiving direct compensation. Paul Willis Paul Willis study of working class lads. Paul Willis studies show how education does not liberate but often reproduces class structure. Paul Willis, in his ethnographic study, Learning to Labor, explored how working class boys, lads, resist the school system which they see as irrelevant to their future jobs. This resistance, ironically, reproduces their class position as they end up in the working class occupations. This study critiques how education, which promises mobility, often reinforces social inequality. तो ये दो बहुत मेजर एग्जाम्पल्स हैं क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च के. पहला फेमिनिस्ट स्टडीज ऑन हाउसवर्क, जिसमें कि ये समझाया गया है कि हाउ हाउसवर्क इज अनपेड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड लेबर, इसमें फेमिनिस्ट स्टडीज हुआ है. और दूसरा पॉल विलिस स्टडी ऑफ वर्किंग क्लास लैड्स इन द एजुकेशन सिस्टम, जिसमें ये समझाया गया है कि एजुकेशन सिस्टम कैसे उसी इनइक्वालिटी और क्लास स्ट्रक्चर को रिप्रोड्यूस करता है. इस पे इन्होंने बहुत डिटेल स्टडी किया है. ये दो एग्जाम्पल हैं, आप बस ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ फेमिनिस्ट स्टडीज ऑन हाउसवर्क एंड पॉल विलिस स्टडी ऑफ वर्किंग क्लास लैड्स इन द एजुकेशन सिस्टम. इसको आप इंडियन पैरेलल से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि इन इंडिया सिमिलर पैटर्न्स आर ऑब्जर्व्ड इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज वेयर यूथ, ये जो पॉल विलिस वाला स्टडी है उसके लिए बता रहे हैं, वेयर यूथ रेजिस्ट फॉर्मल स्कूलिंग. फॉर एग्जाम्पल, Bihar and UP. Research in Bihar and UP shows that young Dalit boys often see school as detached from their reality and instead they seek early employment, inadvertently perpetuating the same caste-based labor system. क्योंकि जहाँ वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर भी सेम जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो क्लास का हो, कास्ट का हो, वो रिप्रोड्यूस होता है. और चूंकि वही सेम स्ट्रक्चर वहां पर भी है तो फिर वो उसमें नहीं रहना चाहते हैं. जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में वहां पर भी वही कास्ट स्ट्रक्चर अगर रिप्रोड्यूस हो रहा है तो बच्चे वहां नहीं पढ़ना चाहते हैं. और फिर चूंकि वो अपने एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर उससे ड्रॉप आउट हो जा रहा है, और ड्रॉप आउट के बाद में सेम टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको में उसमें वो वापस आ जा रहे हैं. They are not able to break through, not able to use the education system. Lee Harvey has divided critical social science research in three main types based on class, gender, and ethnicity and racism. So according to Lee Harvey, critical research typically engages with themes like class, gender, race, ethnicity. इसमें आप सेक्सुअलिटी और डिसेबिलिटी इन दोनों को भी इश्यूज को भी जोड़ सकते हैं. तो 5 हो जाएंगे एक तरह से, बट ली हार्वी में 3 में डिवाइड किया था, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेसिज्म. बट इसमें आप ये दोनों को भी जोड़ लीजिए, सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी. These axes of identity and oppression intersect to create unique social experiences. The goal of critical research is to uncover these hidden structures and challenge them. अब जैसे आप एग्जाम्पल देखिए क्लास का. Studies on informal sector workers in India, for example, मान लीजिए rag pickers in Delhi. Now that reveals how class intersects with caste to keep workers in exploitative conditions. Gender पर आते हैं. Research by SEWA, that is Self-Employed Women's Association, focuses on empowering women in informal sectors and challenging systemic patriarchy. Ethnicity and racism. Northeastern students in Delhi often face discrimination, which is documented in studies around urban racism. अब आते हैं issues on sexuality. Queer studies in India post 377 verdict explore how legal changes are not always matched with social acceptance. मतलब legal level पे तो changes हो जाते हैं, but क्या social acceptance आता है? And then disability. Activists and scholars have shown how the Indian education and employment systems exclude disabled people by design, not by accident. इस तरह से सिस्टम डिजाइंड ही है कि आप अगर डिसेबल्ड हैं, अगर मैं डिसेबल्ड हूं तो मुझे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाते हैं, बिकॉज सिस्टम
ही उस तरह से डिजाइंड है, चाहे वो एक्सेस का क्वेश्चन हो, चाहे करिकुलम का क्वेश्चन हो, करिकुलम के एक्सेसिबिलिटी का क्वेश्चन हो, बुक्स के एक्सेसिबिलिटी का क्वेश्चन हो, तो आई एम बीइंग एक्सक्लूडेड बाय डिजाइन. Now we come to the main features of critical social science research. First point being abstract concepts and ideology. So, critical social science research uses abstract concepts like housework, but it goes beyond the surface to study ideology behind taken for granted beliefs. Like critical social science research analyzes how common sense beliefs, जैसे कि housework is a woman's duty. Now these are ideologically loaded. They benefit some groups and while harming others. Like they benefit the groups like for men and capitalists while it harms other groups like women. For example, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कल्चरल नॉर्म्स अराउंड डाउरी और women's sacrifice are ideological tools that reinforces patriarchy. Also, media portrayals of ideal housewives perpetuate these ideologies. यहाँ पे आइडियोलॉजी का डेफिनेशन को हम लोग को रिमाइंड कर लेना चाहिए कि दीज आर अ सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स दैट जस्टिफाई एंड नॉर्मलाइज सोशल अरेंजमेंट्स इवन व्हेन दे आर अनइक्वल. ये जस्टिफाई कर देते हैं इन आइडियोलॉजी उस अरेंजमेंट को, इवन दो इट इज अनइक्वल इट जस्टिफाइज दैट अरेंजमेंट. नेक्स्ट फीचर ऑफ क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च इज टोटलिटी, स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री. तो टोटलिटी का क्या मतलब है? Totality refers to the view that social phenomena are interrelated and form a total whole. It refers to the view that social phenomena are interrelated and they form a total whole. So critical researchers, they don't study one isolated event. उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ते हैं. They look at how economic, political and cultural forces are interlinked to form a total system. जैसे कि मान लीजिए आपको इंडिया के फार्मर सुसाइड्स को पढ़ना है, तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक्स. इट इन्वॉल्व्स कास्ट स्ट्रक्चर्स, बैंकिंग पॉलिसी, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, क्लाइमेट चेंज, बहुत सारी चीजें हैं. इट इज अ ऑल आर इंटर रिलेटेड एंड इट फॉर्म्स अ टोटल होल. अब आते हैं स्ट्रक्चर पे. स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर कंस्ट्रेन्स और लिमिट्स व्हाट पीपल कैन डू. Structure constraints or limits what people can do. So structures like caste, patriarchy, capitalism, they shape what is possible or impossible for people. So for example, a Dalit woman in a rural area has a very different life chances than an urban upper caste man. नेक्स्ट हम आते हैं हिस्ट्री पे. टोटलिटी, स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है कि दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट स्टैटिक. जो स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात किए अभी, these are not static, they change. Therefore, studies of society needs to be in historical context. Studies of society needs to be in historical context. तो मतलब क्या हुआ कि society evolves. Critical research must trace history to understand today's inequalities. For example, understanding land ownership in India needs looking at colonial and caste histories. तो क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च का पहला पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजी, दूसरा टोटलिटी, स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री. ये दोनों हमने देखा. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज डीकंस्ट्रक्शन, एसेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन. तो क्रिटिकल मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द डोमिनेंट आइडियाज, मतलब डीकंस्ट्रक्शन, to expose hidden power and then rebuilding understanding, that is reconstruction, based on more just and inclusive perspectives. जैसे in feminist research, deconstructing how housework is labeled as natural or unskilled labor and then reconstructing it as economic labor to demand wages. Deconstruction क्या है कि different parts of social life are broken down to unlock the essence. So sociologists using critical methods try to get to the core or root essence of social phenomena, not just how things appear but what they mean structurally and ideologically. उसको वो उसके एकदम कोर पे जाकर समझने का कोशिश करते हैं. तो पहले तो हमने इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हाउसवर्क का कॉन्सेप्ट है, उसको डिकंस्ट्रक्ट किया, उसके एसेंस यानी कि कोर तक गए. कोर तक जाने के बाद हम वापस से उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे
और रिकंस्ट्रक्ट किस तरह से करेंगे? यूजिंग द मोर जस्ट एंड इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव्स, डिकंस्ट्रक्शन, एसेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, विच इज प्रैक्सिस। प्रैक्सिस मीन्स प्रैक्टिकल रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी, प्रैक्टिकल रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी। तो अकॉर्डिंग टू हार्वी, रिसर्चर शुड बी एन इन्वॉल्व्ड एंड कमिटेड पार्टिसिपेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि unlike positivist research, which assumes the researcher should be detached and neutral, critical methodology expects the researcher to be involved, reflexive, and politically committed. They are not just gathering data, they are part of the process of change. तो यहाँ पे चेंज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम सोशियोलॉजी के इस सोशियोलॉजी को इस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें सिर्फ उसको इंटरप्रेट करना है, समझना है, हमको उसमें बदलाव भी लाना है। अब जैसे पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, PAR, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च इन इंडियन स्लम्स, where researchers and local residents they co-develop solutions to sanitation और housing issues। मिल के वो काम कर रहे हैं क्योंकि जो लोकल रेसिडेंट्स रह रहे हैं उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है अपने इश्यूज की, इसलिए रिसर्चर्स वहां पे मिल के उनके साथ में सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, प्रदान्स वर्क इन ट्राइबल एरियाज ऑफ झारखंड, दैट इज आल्सो ऑफन बेस्ड ऑन सच पार्टिसिपेटरी एंड एंगेज्ड मेथड्स। सो प्रैक्सिस चेंजेस द वर्ल्ड। प्रैक्सिस मीन्स फ्यूजन ऑफ थ्योरी एंड चेंज, theory and action. Praxis means the fusion of theory and action. The aim is to transform the society, not just interpret it. So sociology becomes a tool for change, for emancipation. अब यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि हाउ सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू सोशल चेंज। सो व्हेनेवर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस appear, this praxis is key to answering such questions with clarity. तो अगर आप क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ेंगे तो वहां पे चेंज आएगा ही आएगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट आप वहां पर दे सकते हैं कि कैसे सोशियोलॉजी सोशल चेंज लाता है, कि हमने सोसाइटी के उस हिस्से को पढ़ा और फिर उसमें बदलाव भी हम ला रहे हैं। तो मेन फीचर्स क्या क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च के? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजी। पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को लिया और उसके पीछे की आइडियोलॉजी को समझा। फिर टोटलिटी, स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री, हम उसको टोटल में पढ़ेंगे, एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह नहीं, इंटर रिलेटेड, कितने सारे चीजों से वो जुड़ा हुआ है। उसके स्ट्रक्चर को कि स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स और लिमिट व्हाट पीपल कैन डू, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाकर देखेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर वो इवॉल्व करता है, वो स्टैटिक नहीं होता है। तो अगर हमको आज की किसी चीज को पढ़ना है तो पीछे से जाके उसको समझना होगा कि वो आज ऐसा क्यों है। फिर हम आएंगे उस कॉन्सेप्ट को, फिर हम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके विभिन्न भागों को तोड़कर उसके एसेंस तक पहुंचेंगे, उसके मेन कोर पे, और वापस से उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको हाउस वर्क को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे कि जिसमें कि उसको एज इनविजिबल लेबर की तरह देखा जाता है, उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता है, और फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे इकोनॉमिक लेबर के रूप में, और उसमें हम वी विल डिमांड वेजेस। और लास्ट में हमारा मुख्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है? प्रैक्सिस, मतलब इससे हमको बदलाव लाना है। तो इस चीज को हम देखेंगे कि रिसर्चर शुड बी इन्वॉल्व एंड कमिटेड पार्टिसिपेंट। तो ये इसका मेन फीचर हो गया। तो हमने अभी तक क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च का नेचर क्या है, उसके जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, कितने में वो डिवाइडेड है, उसके मेन फीचर्स, इन सबको देख लिया। अब हम आएंगे क्रिटिकल सोशल साइंस के रिसर्च मेथड्स को देखने के लिए। तो पहला है, इट इज नॉट टाइड टू एनी single research method. It is not tied to any single research method. So critical social science does not limit itself to one specific method, जैसे कि सर्वेज या इंटरव्यूज अलोन। Unlike positivist approaches that prefer structured and standardized methods, critical methodology believes that the method should suit the aim of the research, especially if the aim is to uncover hidden structures or power relations. जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि if a researcher wants to study caste discrimination in elite universities in India, they might use both personal interviews to understand experience and document analysis to study institutional policies. तो वो किसी भी एक सिंगल रिसर्च मेथड से टाइड नहीं है, जैसा हमारा एम को सूट करे वो सभी मेथड्स को हम यूज करेंगे। क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज,
case studies, ethnography, semiology, depending on the purpose of research. हम सारे methods use करेंगे. So all these methods are acceptable tools in critical research, but their use is driven by purpose, not by tradition. So questionnaire, इनका क्या फायदा होता है? It is useful to gather general patterns or baseline data. It is useful to gather general patterns or baseline data. Interviews allows for deep understanding of personal experiences. Case studies help focus on one community, incident or movement in detail. एक particular चीज पे अगर हमको focus करना है तो. Ethnography, it is immersive research that reveals cultural and social practices of marginalized groups. Ethnography. और सेमियोलॉजी क्या होता है? सेमियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साइंस, SIGNS, साइंस, symbols and language. Study of science, symbols and language to decode ideological meanings. तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे मान लीजिए इंटरव्यूज है, तो स्टडिंग द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ आशा वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन, अगर हमको वो समझना है तो हम उनको इंटरव्यू करेंगे. केस स्टडी, जैसे कि अगर हमको इन्वेस्टिगेट करना है अ दलित वुमन सरपंच स्ट्रगल इन पंचायत इलेक्शन, तो हम उस एक पर्टिकुलर केस को पूरा फॉलो करेंगे. एथनोग्राफी में लाइफ इन अ मैनुअल स्कैवेंजिंग कम्युनिटी, अगर हमको वो देखना है तो हम उसमें एथनोग्राफी यूज करेंगे. सेमियोलॉजी, जिसमें साइंस और सिंबल्स की बात है, तो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू एनालाइज फेयरनेस क्रीम एडवर्टीजमेंट टू अंडरस्टैंड कास्ट एंड ब्यूटी आइडियल्स, तो वहां पे ये साइंस, सिंबल, इन चीजों पे फोकस किया जा रहा है कि कैसे उसके पीछे भी आइडियोलॉजिकल मीनिंग छिपा है, तो वहां पे हम सेमियोलॉजी यूज करेंगे. So any method is permissible as long as the researcher goes beyond the surface. The emphasis is not just on the tool used, but on the depth of analysis. A researcher should not just collect data or responses, they must explore the power structures. हमको उसके पीछे का आइडियोलॉजी समझना है. जैसे कि पहला में ही हमने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके पीछे का छिपा हुआ आइडियोलॉजी देखना है. They must explore the power structures, ideologies, and historical context behind those responses. तो अगर हम सिर्फ एक सुपरफिशियल स्टडी करते हैं, जैसे कि अगर एक सुपरफिशियल स्टडी की जाए, that may note that tribal girls drop out of school due to lack of transport. लेकिन अगर हम बियॉन्ड द सरफेस जाके समझेंगे तो इट मे रिवील स्ट्रक्चरल निग्लेक्ट, जेंडर नॉर्म्स, लैंग्वेज बैरियर्स, ये सभी जो अभी तक रूटेड हैं बहुत सारे पॉलिसी फेलियर्स की वजह से, ये अभी भी हमारे सिस्टम में रूटेड है. तो ऊपर से देखने से वो सभी चीजें नहीं पता चलेंगी, खाली सुपरफिशियल लेवल की जानकारी मिलेगी. जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया कि लड़कियां नहीं आ रही हैं हमारी क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट है. लेकिन अगर हम उसको और बियॉन्ड द सरफेस जाके अच्छे से इन डेप्थ समझेंगे तो फिर हमको पता चलेगा कि उसमें और भी बहुत सारे बैरियर्स हैं. अब हम आते हैं इस मेथड के क्रिटिसिज्म पे. ये क्रिटिसिज्म वाज गिवन बाय मार्टिन हैमर्सली इन 1992. तो पहला पॉइंट है हाउ टू क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड. मेनी पीपल मे बी साइमल्टेनियसली ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड. बिल्कुल ये होता है. हैमर्सली क्वेश्चंस द ब्लैक एंड व्हाइट डिवीजन इन क्रिटिकल रिसर्च. हु इज ऑप्रेस्ड, हु इज ऑप्रेसिंग. इन रियल लाइफ इंडिविजुअल्स में होल्ड बोथ पोजिशंस एट वंस. ऐसा बिल्कुल होता है. जैसे मान लीजिए एक कोई स्कूल टीचर है, सो दैट स्कूल टीचर मे बी अप्रेस्ड बाय द administration in the school but may himself or herself discriminate against the students. वो खुद भी अप्रेस हो रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी अप्रेस कर रहे हैं, ये भी होता है. या फिर कोई अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो वो खुद अपना डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन. लेकिन जब वो घर पर आते हैं तो घर पर दे माइट एक्सरसाइज पेट्रियार्कल पावर ओवर द वुमेन. सो द लाइन बिटवीन द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस इजंट ऑलवेज क्लियर. तो ये तो पहला प्रॉब्लम है, कैसे डिस्टिंग्विश करें. दूसरा, प्रॉब्लम्स इन आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ ऑपरेशन. मतलब कि देयर मे बी अदर सोर्सेज ऑफ ऑपरेशन दैट आर स्टिल नॉट आइडेंटिफाइड. So we may not even know all the forces that causes oppression.
Some sources remain invisible or hidden, especially if our own assumptions blind us. अब जैसे कि हम ज्यादातर फोकस करते हैं कास्ट या जेंडर बेस्ड ऑपरेशन पे, बट कई बार डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या डिजिटल एक्सक्लूजन जैसे कि लैक ऑफ इंटरनेट ये ओवरलुक हो सकता है सोर्सेज ऑफ ऑपरेशन. सो हैमर्सली वांट्स दैट क्रिटिकल रिसर्चर्स में मिस हिडन स्ट्रक्चर्स इफ दे एंटर विद प्रीफिक्स्ड आइडियाज. अगर हम बहुत ज्यादा फोकस्ड है एक सोर्स ऑफ ऑपरेशन पे, तो बाकी सोर्सेज ऑफ ऑपरेशन को हम मार्जिनलाइज कर सकते हैं. Hammersley believes what constitutes oppression are subjective judgments. So he argues that identifying oppression is not always objective or clear cut. It often depends on value based or emotional interpretations which vary by context. तो ये subjective judgment पे भी निर्धारित हो सकता है, निर्भर हो सकता है. जैसे कि मान लीजिए हिजाब का बैन इन क्लासरूम. Now that may be seen by some people as empowering, मतलब patriarchy के against, but it can be seen as oppressive also against religious freedom. उसके दोनों हिस्से हैं. So hence deciding what counts as oppression often involves subjective or political or moral judgment, not universal truth. Next point, interest of different oppressed groups might clash. जैसे कि मान लीजिए एक religious minority group might be oppressed, however the religion might be highly patriarchal in nature and oppressive to women. तो रिसर्चर किस पर फोकस करें, बहुत मुश्किल है. Sometimes these two oppressed identities conflict. A group facing marginalization may itself practice oppression internally. तो ऐसी स्थिति में रिसर्चर कहाँ फोकस करे? The researcher may struggle with the moral trade-off and cannot support all oppressed groups simultaneously without this conflict. Next, truth claims problematic. Difficult to evaluate truth of theories. Oppressed groups may not be able to evaluate the truth because of false consciousness. तो यहाँ पे ट्रुथ क्लेम के बारे में बात की गई है. Critical theory often assumes that the oppressed don't realize their condition due to false consciousness. ये false consciousness जो है मार्क्सिस्ट आइडिया है. इसको आप मार्क्सिज्म में जाके देख सकते हैं. मैंने इंट्रोडक्शन में ये बताया हुआ है false consciousness आइडियोलॉजी के बारे में. तो मतलब कि who decides what is true consciousness? अब ये कौन डिसाइड करेगा? क्या हम डिसाइड करेंगे? रिसर्चर डिसाइड करेगा? कैन रिसर्चर्स क्लेम सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग? हु डिसाइड्स? अब जैसे मान लीजिए एक रूरल वुमन है. नाउ शी डजंट फील oppressed by her husband's control. Let's say for example, is she unaware or is that her truth? So declaring others as unaware of their oppression is itself a value laden and risky move. आप समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पे ये बहुत हम थिन आइस पे वर्क कर रहे हैं. जब अगर हम कह रहे हैं कि ये ट्रुथ है, आप ट्रुथ को नहीं जान रहे हैं, ये आपका फॉल्स कॉन्शियसनेस है, तो अगेन हम एक सुपीरियरिटी क्लेम कर रहे हैं कि हमको ज्यादा पता है, आपको नहीं पता है. तो ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है. तो इवन अ करेक्ट थ्योरी मे नॉट प्रोड्यूस सोशल चेंज टू ओवरकम ऑपरेशन. ये बात भी है. मतलब even if critical researchers develop a theoretically sound and accurate analysis, that doesn't guarantee real world impact. तो critical social science research का तो यही मेन है कि हमको लास्ट में उसमें चेंज लाना है, बट जरूरी नहीं कि उससे चेंज आए. जैसे मान लीजिए ample research on caste discrimination exists, but manual scavenging और caste based exclusion still continues. वो तो अभी भी है unfortunately. तो क्रिटिकल अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. सो हैमर्सली रिमाइंड्स अस दैट रिसर्च डज नॉट इक्वल रेवोल्यूशन. सोशल चेंज बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत मल्टी लेयर्ड है. नाउ वी कम टू डिफेंस ऑफ क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च गिवन बाय फिल कार्स्पेकन. सो कार्स्पेकन बिलीव्स दैट क्रिटिकल research need not be biased just because the researchers engage in it have value commitments. तो इसका क्या मतलब हुआ? Karspeken responds to the criticism that critical researchers are biased because they start with commitment to social justice or liberation. He argues that having value commitments, for example, towards equality or justice, does not automatically make the research biased, as long as the research process is transparent and rigorous.
अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए, एक फेमिनिस्ट रिसर्चर का स्टडिंग वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन. सो that researcher may be committed to gender equality, but they can still collect valid data and analyze it logically. Their commitment to values guides their focus, not their findings. दूसरा पॉइंट, द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च हैव अ चांस टू कंफर्म और कॉन्ट्राडिक्ट द अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप्ड बाय रिसर्चर. मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन फेवर ऑफ क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च, क्योंकि यहाँ पर जिनको पढ़ा जा रहा है, जैसे वर्कर्स, विमेन, माइनॉरिटीज, दे आर नॉट पैसिव सब्जेक्ट्स, दे आर गिवन अ वॉइस. दे कैन अग्री और डिसअग्री विद द रिसर्चर्स इंटरप्रिटेशन. तो ये एक डायलॉग में वर्क करता है, एक डायलॉजिकल प्रोसेस है दैट चेक्स द रिसर्चर्स assumption and reduces bias. Thus, it encourages non-authoritarian relationship between the participants and the researcher. So, critical research does not place the researcher above the participants. Instead of a top-down model where the researcher is the expert, जैसा कि प्राय होता है, यहाँ पे it promotes mutual respect and dialogue. So, the process is non-authoritarian and participatory. जैसे कि मान लीजिए ट्राइबल एजुकेशन को आपको स्टडी करना है, तो अ रिसर्चर डज नॉट जस्ट ऑब्जर्व और इंटरव्यू द कम्युनिटी बट ऑल्सो वर्क्स विद देम, इनवाइट्स देयर फीडबैक, को क्रिएट्स नॉलेज. दोनों को क्रिएटर है यहाँ पर. सो दिस एम्पावर्स द पार्टिसिपेंट्स एंड मेक्स द रिसर्च प्रोसेस डेमोक्रेटिक इन नेचर. तो फिल कार्सपेकन ने यहाँ पे डिफेंड किया है क्रिटिकल रिसर्च को बाय आर्ग्यूइंग कि वैल्यूज का मतलब ये नहीं कि बायस है. तो अगर रिसर्च को अच्छे से किया गया, वो फेयर है, ओपन है, तो ये नहीं कि उसमें बायस है. वैल्यू कमिटमेंट्स होने से फोकस ज्यादा बढ़ता है और ज्यादा अच्छा रिसर्च हो सकता है. एंड यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कैन चैलेंज द रिसर्चर्स इंटरप्रिटेशन, एंड रिसर्च यहाँ पे कोलैबोरेटिव इन नेचर, हायरार्किकल नहीं है. सो दिस क्रिएट्स अ मॉरली एंगेज्ड येट इंटेलेक्चुअली साउंड फॉर्म ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी. तो यहाँ तक हमने क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च को देख लिया. अब हम आते हैं फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी पे. पहला पॉइंट है अप्रोचेस टू फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी. कैसे पढ़ेंगे उसको? तो पहला अप्रोच है क्रिटिक ऑफ द मेल स्ट्रीम रिसर्च. ये एक तरीका है फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी का, उसको पढ़ने का. तो पहला है क्रिटिक ऑफ मेल स्ट्रीम रिसर्च. मेल स्ट्रीम रिसर्च कैसा होता है? सेक्सिस्ट, बेस्ड ऑन पैट्रियार्कल प्रिंसिपल्स. तो फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज this mainstream or mainstream sociology for being sexist and rooted in the patriarchal principles. So such research is often designed by men, about men and for men, ignoring the women's perspective completely. जैसे early studies on workplace often studied only the male workers, ignoring women's unpaid labor at home or in informal sectors. तो जो पहले मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी था, कंप्लीटली मेल स्ट्रीम था. ये एक अप्रोच है, द क्रिटिक ऑफ मेल स्ट्रीम रिसर्च. दूसरा क्या है? द क्लेम दैट देयर कैन बी डिस्टिंक्टिव फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड्स. Claim that there can be distinctive feminist research. It argues more conventional scientific methods used by men. That is, they are not helpful in understanding social reality of women. So feminist scholars argue that the traditional research methods used by men are often overly scientific. ये जो conventional traditional scientific methods हैं, ये helpful नहीं होते हैं women के reality को समझने के लिए. Overly scientific होते हैं, detached और objective होते हैं, inappropriate for studying women's lived realities. Hence, they advocate for empathetic, reflexive, and participatory methods that suit the study of women's experiences. तो ये दूसरा अप्रोच है पढ़ने का टू फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. जैसे मान लीजिए, इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर्ड सर्वेज, फेमिनिस्ट रिसर्चर्स may use life histories or in-depth interviews to study, let's say, rural women's work, acknowledging their emotions, struggles, voice. तो अगर कन्वेंशनल साइंटिफिक मेथड से चलेंगे तो शायद यहाँ पर हम सर्वे यूज करें, स्ट्रक्चर्ड सर्वे, जो कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन बहुत जल्दी कवर कर लेता है. लेकिन अगर उसको अच्छे से हमको समझना है तो इन डेप्थ इंटरव्यू यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इनका कहना है कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जा रहे हैं
वो विमेन के लिव्ड रियलिटी को नहीं समझ पाते, उसमें हेल्पफुल नहीं होते हैं. सो दे क्लेम दैट देयर कैन बी अ डिस्टिंक्टिव फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड. अपना एक अलग तरीका हो सकता है. थर्ड अप्रोच है फेमिनिज्म. Feminism can reveal distinctive epistemology superior to other epistemologies. Now, feminists assert that their way of knowing, that is, the knowledge, epistemology, is grounded in real life experiences. It is built on empathy, reflexivity, and inclusion, focused on power structures and oppression. So, they argue that this epistemology offers a richer and more truthful understanding, especially of such marginalized groups. अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए एक ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट जिस पे पेट्रिशिया हिल ने काम किया है, पेट्रिशिया हिल कॉलिंस. ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट शोज हाउ इंटरसेक्शनल आइडेंटिटीज का मतलब कि बहुत सारे आइडेंटिटीज एक साथ कैसे इंटरसेक्शन में काम कर रहे हैं. जैसे रेस, क्लास, जेंडर एक साथ हैं बट वो इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं. रेस, क्लास, जेंडर, ये तीनों. How intersectional identities shape women's realities, which mainstream sociology often misses. तो ये 3 अप्रोच हैं टू स्टडी फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी. पहला, द क्रिटिक ऑफ मेलस्ट्रीम रिसर्च. क्लेम दैट देयर कैन बी डिस्टिंक्टिव फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड, अपना अलग मेथड ही हो सकता है. और थर्ड, कि एक अलग ही एपिस्टेमोलॉजी, मतलब एकदम फिलॉसफी के पॉइंट पे जाके जहां पर हम नॉलेज को समझते हैं वहीं पे जाके इसको समझा जा रहा है कि फेमिनिज्म कैन रिवील डिस्टिंक्टिव एपिस्टेमोलॉजी व्हिच इज सुपीरियर टू अदर एपिस्टेमोलॉजीज. तो अब हम पहले वाले अप्रोच को समझते हैं, द अटैक ऑन मेल स्ट्रीम रिसर्च. So from this point of view, research has generally been carried out by men, about men, by men and for men. So traditional sociology often focuses on male experiences designed by male researchers and ends up producing knowledge that centers men. जैसे कि टैलकट पार्सन्स का theory of family. टैलकट पार्सन्स theory of family assumes male breadwinner, completely ignoring single mothers or women-headed households. वैसा भी होता है. Pamela Abbott, Claire Wallace, Melissa Tyler. Pamela Abbott, Claire Wallace and Melissa Tyler in 2005. इन तीनों ने मिलकर अपना एक क्रिटिसिज्म दिया है ऑफ मेल स्ट्रीम सोशियोलॉजी. तो वो अभी हम देखेंगे. These female scholars criticized how sociology ignored or misrepresented women's lived realities. तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि जो मेल स्ट्रीम रिसर्च है या मेन स्ट्रीम रिसर्च है सोशियोलॉजी में, वो कंसर्न रहता है विद रिसर्च ऑफ मेन एंड देयर लाइव्स. ये हमने पहले भी अभी देखा कि most sociological research historically studied male roles either in work, politics, leadership, ignoring women's contributions. दूसरा, रिसर्च फाइंडिंग्स कैसे निकाला जाता था? पहले वो मेन पे निकाला जाता है और फिर उसको जनरलाइज किया जाता है टू द होल पॉपुलेशन. Now, findings from studies on men were applied to everyone as if men's experience is equal to human experience. ऐसा तो नहीं है. Now, studies on stress at work ignored the dual burden of work and domestic responsibilities faced by working women. Third point, issues of women. Issues of women were overlooked. जैसे issues like menstruation, reproductive health, domestic violence, they were rarely studied in early sociology. For years, violence within homes was seen as a private matter, domestic, not a subject of sociological concern. तो issues of women को overlook कर दिया गया था. अगर उसको include किया भी जाता था तो stereotype रहता था. When women were included, they were often depicted as emotional, caregivers, not workers, caregivers, dependent, not decision makers. So early media studies often portrayed housewives as passive TV watchers, ignoring their active roles in family dynamics. और लास्ट में सेक्स एंड जेंडर, अगर इसको लिया भी जाता था तो बस एक एड ऑन की तरह, मतलब कि जेंडर वाज नॉट सेंट्रल टू द एनालिसिस, इट वाज जस्ट टिक बॉक्स. रिसर्च कैटेगरी में टिक बॉक्स था. So studies on poverty might just note the sex of participants, but not explore how gender affects poverty differently for men and women. The attack on mainstream research.
इसका भी हम आगे में एक एग्जाम्पल में देखेंगे. एग्जाम्पल, सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम एंड डिवियंस. Sociology of crime and deviance was until 1970s exclusively sociology of male crime and delinquency. मतलब कि mainstream sociology overlooked female criminality. Research focused on men as if women didn't exist or matter in deviant studies. So prior to the 1970s, studies like those of Albert Cohen or Merton only addressed male gang culture and strain theory, ignoring why women commit crimes. तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी में विमेन के डिवियंस को इग्नोर कर दिया गया. दूसरा, एन ओक्ले. एन ओक्ले said housework was seen too unimportant to be studied until her own pioneering work. So housework was viewed as mundane and not sociological enough. Oakley was the first to treat unpaid domestic labor as legitimate topic of research. थर्ड एग्जाम्पल में हम देखेंगे जॉन गोल्डथॉर्प. जॉन गोल्डथॉर्प्स क्लास स्कीमा फॉर वाइव्स वाज बेस्ड ऑन हस्बैंड्स ऑक्यूपेशन. तो सोशल क्लास क्लासिफिकेशन जो दिया गया, सोशल क्लास क्लासिफिकेशन इन अर्ली सोशियोलॉजी गिवन बाय जॉन गोल्डथॉर्प्स, he ignored women completely by considering only men's occupation to determine family class. इंडिया में भी जब एनएसएसओ या सेंसस डेटा लिया जाता है तो अर्ली क्लासिफिकेशन जो होता था ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स आल्सो इग्नोर्ड विमेन्स इनकम कंट्रीब्यूशन, अज्यूमिंग मेन एज सोल ब्रेड विनर्स. तो सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम एंड डिवियंस, एन ओक्लीज हाउसवर्क, जॉन गोल्डथॉर्प्स क्लास स्कीमा. फिर हम आते हैं टैलकट पार्सन्स. टैलकट पार्सन्स हैज आल्सो बीन अक्यूज्ड ऑफ प्रोवाइडिंग sexist or biologically based explanations of female behavior. So Parsons' functionalist view suggested women are naturally suited to expressive roles, जैसे caregiving, emotional support, reinforcing gender stereotypes as biology. So he claimed mothers are biologically inclined to nurture children, which justified patriarchy in the name of functional needs of society. So although the problem of mainstream sociology has not been eliminated, but it has been greatly reduced. So feminist critique has transformed sociology. While bias hasn't vanished, women's experience are increasingly part of research agenda. जैसे कि आजकल बहुत सारे टॉपिक्स आप इकोनॉमिक्स में भी देखते होंगे, जेंडर बजटिंग को लिया जाता है या पिंक बजट इसको लिया जाता है. Women's informal labor and reproductive rights, these are now mainstream sociological inquiry, even especially in India. तो ये हमने अभी पहला देखा अप्रोच टू फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी, दैट इज अ क्रिटिक ऑफ द मेल स्ट्रीम और मेन स्ट्रीम रिसर्च. इसके बाद हम आते हैं फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड्स, जिसमें हमने देखा था कि क्लेम किया जा रहा है कि देयर कैन बी अ डिस्टिंक्टिव फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड. अब हम उसको देखेंगे कि फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड ये एक दूसरा अप्रोच है. सो एन ओक्ली अप्रोचेस टू इंटरव्यूइंग. एक है मैस्कुलिन मॉडल ऑफ इंटरव्यूइंग. एन ओक्ली अप्रोचेस टू इंटरव्यूइंग. तो इसका क्या मतलब हुआ? ओक्ली इज अ पायनियर इन फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी, particularly in the way interviews are being conducted with empathy, reciprocity, equality. उन्होंने बताया कि एक मैस्कुलिन मॉडल ऑफ इंटरव्यूइंग है. मतलब दिस रेफर्स टू द ट्रेडिशनल पॉजिटिविस्ट मॉडल ऑफ इंटरव्यूइंग, जहां पर रिसर्चर इज डिस्टेंट, न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव, और हायरार्की भी है इसमें कि जो पार्टिसिपेंट है उससे ऊपर रिसर्चर अपने आप को रखते हैं. सो दे ट्रीट द इंटरव्यूअर्स एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, नॉट एज कोलैबोरेटर्स. मतलब कि जो मेन स्ट्रीम रिसर्च है, दे ऑफन ट्रीट पीपल लाइक डेटा सोर्सेज, नॉट इंडिविजुअल्स विद वॉइसेस. नाउ फेमिनिस्ट क्रिटिक एम्फसाइजेस को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कोलैबोरेटर के रूप में. जैसे मान लीजिए आप एक सर्वे कर रहे हैं रूरल वुमेन के साथ. A survey that asks a rural woman to tick a box about domestic violence without discussing her situation is objectifying, not participatory. आपने उनको बस एक पेपर पेन दे दिया कि आप टिक कीजिए. तो यहाँ पर आप उनको पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनके आप एक्सपीरियंस को नहीं समझना चाह रहे हैं, उसको एक ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी की तरह देख रहे हैं. तो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में एक हायरार्की है. इंटरव्यूअर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिटैच्ड, avoid answering questions, prevent emotional attachment. तो
ट्रेडिशनल रिसर्च में इंटरव्यूअर इज ट्रेन टू अवॉइड एम्पैथी, maintain professional distance, not reciprocate emotionally. This can make respondent feel unheard or even used. जैसे मान लीजिए आप कोई मेडिकल या सेंसस का सर्वे कर रहे हैं, तो मेडिकल सेंसस सर्वे ऑफन डिस्करेज इंटरव्यूअर्स फ्रॉम engaging with emotional responses which limits insight into lived experience. आप उनके lived experience को नहीं समझ पाइएगा. तो एक मैस्कुलिन मॉडल ऑफ इंटरव्यूइंग है जो हमने अभी देखा ना. ओकलीज फेमिनिस्ट अप्रोच टू इंटरव्यूइंग, ये क्या है? Oakley conducted 178 interviews with women on becoming mothers. 178. Her research was not just about data collection, it was about building trust and amplifying women's voices during a vulnerable phase of life. Of course, motherhood is a very vulnerable phase of life. Instead of treating them as statistics, she listened deeply to their concerns about pregnancy, childbirth, postnatal care. उसको उन्होंने एकदम डीपली समझा. उन्होंने समझा कि women were anxious about child care, medical issues. Oakley found that women often use the interview space to express their worries. It became therapeutic, not just informative. सिर्फ एक data collection process नहीं था ये. A woman might open about lack of postnatal medical checkup, which becomes valuable qualitative data for improving maternal health policy. इस तरह के जब आपको deep insights मिलते हैं तो policy level पे कितने critical हो सकते हैं. Oakley took time to listen, offer information and assist them. So unlike traditional researchers who maintain distance and neutrality, Oakley engaged actively with her respondents. She saw research not as extraction of data, but as a mutual process of trust and support. For example, during her research on childbirth, Oakley didn't just ask questions, but also gave advice, emotional support, and helped women navigate their experiences as mothers. In some cases, she was also present at the birth of the child. So, we can see that she immersed herself in the lives of her subjects, even being physically present during childbirth. This shows her deep commitment to the people she studied. Oakley said that the women were reacting to my own relationship with them, which was relatively intimate and non hierarchical. So she did not position herself as a distant observer. Instead, she became a part of their world, building a non hierarchical bond. Now, this kind of intimacy improves the quality of the interaction and data. So, we can say Oakley's gave a feminist alternative. What does it mean? Now, it means that the interviewers must involve rapport, collaboration, and openness. Feminist interviews must prioritize empathy, cooperation, and trust rather than rigid questions and one-sided data collection. Interviewers should answer respondents' questions honestly and share experiences where relevant. So the interview is a dialogue, not a one-way street. The researcher is also a person with lived experience, not a neutral machine. So if a woman asks the researcher, "Did you also face similar issues while raising your children?" Oakley encourages honest sharing, which builds trust. So now the interviewer is part of the relationship, not outside of it. So feminist methodology rejects the idea that researchers must be detached. The researcher is deeply embedded in the social context of the participant. Now we come to the evaluation of it. What does it give? Evaluation of Oakley's approach. It gives improved data quality. It helped reduce anxiety and gave women voice. It gave voice to women's real experiences. So this kind of trust-based relationship makes the participant feel very comfortable, leading to richer, more authentic data. It allowed women to talk freely, especially on sensitive topics. Because they felt safe and respected, women share more on emotional topics which are taboo, topics which are related to very personal or emotional in nature. It made the research more ethical and empowering. So, not just to gather data, but change the conditions of women's lives.
Feminist methodology aims for social change, not just academic knowledge. Research should transform, not just observe. So, Oakley's work influenced maternal care practices in the UK by centering women's voices in healthcare systems. But there are, of course, criticism. The criticism has been given by Ray Pawson, who argued Oakley's approach is not original but a variation of unstructured interviews. So, Pawson critiques Oakley for repackaging what interpretive sociologists already do, that is, they build rapport using open ended interviews. So, symbolic interactions like Howard Becker also use flexible interviews long before Oakley claimed. Ray Pawson claimed she simply elaborated existing methods used by interpretive phenomenological sociologists. So Pawson suggests that Oakley's feminist approach is not something revolutionary, just a more detailed version of qualitative research already in use. Phenomenologists have long studied lived experience just like Oakley did, especially in healthcare and emotion research. और ये तो हमने अभी देखा, ये तो हमने दो अप्रोच देखा फेमिनिस्ट मेथडोलॉजी का, क्रिटिक ऑफ मेनस्ट्रीम रिसर्च एंड दूसरा फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड. अब हम आएंगे फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी पे. फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट एपिस्टेमोलॉजी, तो सैंड्रा हार्डिंग एंड स्टैनली वाइस, इसको इन दोनों ने इसको अच्छे से बताया है हमें. विमेन कोर आर्ग्यूमेंट क्या है इसका? विमेन सोशल पोजीशन गिव्स देम यूनिक इनसाइट्स इनटू हाउ सोसाइटी वर्क्स. मतलब यहाँ पे इन्होंने उसको कंप्लीटली पिक्चर को ही रिवर्स कर दिया है, रादर देन ये सोचना कि विमेन के इश्यूज को नहीं पढ़ा जा रहा है, उनके नजरिए से नहीं देखा जा रहा है. इसको ठीक उन्होंने उल्टा कर दिया कि विमेन का पोजीशन ही एक नया नजरिया देता है. तो ये कितना एक एम्पावरिंग स्टेटमेंट है ये. बिकॉज विमेन ऑक्यूपाई डिफरेंट ऑफन very varied social positions compared to men, they can observe aspects of society that men might overlook or normalize. उनके व्यू पॉइंट को ही यहाँ पर स्ट्रेंथ दिया गया है. Thus their perspective is critical for building inclusive and truthful knowledge. जैसे मान लीजिए एक डोमेस्टिक वर्कर है, they may understand the class oppression and gendered exploitation. अगर एक फीमेल डोमेस्टिक वर्कर है, so they may understand class oppression and gendered exploitation much better than a male employer. उसको वो बहुत सारे लेवल पे समझ पा रहे हैं. Feminist knowledge can only come from examining the unique experiences of women in societies in which men and women experience social life in different ways. Of course, the everyday lived experiences of women shaped by gender, caste, class, बहुत सारे levels पे often provide vital standpoints to understand social structures, जैसे कि patriarchy, family, or even labor. So while men may see, let's say, arranged marriage as tradition, women may experience it as very differently. They might experience it as a structural constraint limiting their autonomy. ये भी हो सकता है. Stanley and Wise वो क्या कहते हैं? In favor of theory derived from experience. They are in favor of theory which is derived from experience. किस तरह का experience? Through the experience of oppressed women. Now, instead of abstract theories built by detached observers, they argue that real social theory should arise from the ground up, from women's own life stories and struggles. क्योंकि अलग अलग औरतों की different women, they have their own different standpoint. जैसे मान लीजिए कोई विमेन ब्लैक हैं, कोई विमेन लेस्बियन है, वर्किंग क्लास है, तो विमेन एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है. अलग कास्ट, क्लास, अलग रिलीजन, सभी से आ रहे हैं लोग. तो दे आर नॉट अ होमोजेनस ग्रुप. दे आर इंटरसेक्टिंग आइडेंटिटीज ऑफ रेस, ऑफ सेक्सुअलिटी, ऑफ caste, class, everything shape different experiences of oppression and hence different feminist standpoints. जैसे कि मान लीजिए एक मिडिल क्लास अर्बन वुमन है, एक मिडिल क्लास अर्बन वुमन में टॉक अबाउट ग्लास सीलिंग इन कॉर्पोरेट ऑफिसेस, while a tribal woman उनका अलग इश्यूज होगा. दे में स्पीक अबाउट एक्सेस टू लैंड राइट्स और सैनिटेशन, उनकी अलग प्राथमिकताएं हैं. So therefore no single feminist view can explain all women experiences, different standpoints, that is plurality of feminist theories. So there is no one size fits all feminist theory.
वैसा एक फेमिनिस्ट थ्योरी नहीं है। फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी embraces diverse context-based perspectives, challenging the idea of a universal female experiences. जैसे बेल हुक्स, उन्होंने एक ब्लैक फेमिनिज्म के बारे में समझाया कि दैट डिफर्स फ्रॉम लिबरल फेमिनिज्म in terms of focus and lived reality. Black feminism differs from the liberal feminism. उनका फोकस और उनके किस तरह से लाइफ को जिया जा रहा है वो अलग अलग है। अब हम आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट एपिस्टेमोलॉजी। इसको रे पॉसन इन्होंने दिया है। तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि इट कैन लीड टू रिलेटिविज्म। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि इफ ऑल नॉलेज इज इक्वली वैलिड हाउ डू वी डिस्टिंग्विश ट्रूथ। जैसा यहाँ पे हमने बताया कि कोई एक सिंगल फेमिनिस्ट व्यू या सिंगल फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी नहीं है। हर चूंकि फीमेल कम फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, उनके अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, और इसके लिए कोई एक यूनिवर्सल फीमेल एक्सपीरियंस नहीं है। प्लुरलिटी ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरीज हैं, तो इट कैन लीड टू रिलेटिविज्म। If every group's perspective is treated as equally valid, there is a risk of relativism, meaning there is no objective truth anymore. जो ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं उनको हमेशा ये चिंता बनी रहेगी कि एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होना चाहिए, तो उस ऑब्जेक्टिव ट्रुथ यहाँ पे आपको नहीं दिख सकता है, हो सकता है उसमें परेशानियां है, तो एक रिलेटिविज्म की बात हो रही है। दिस अंडरमाइंस द एबिलिटी ऑफ साइंस और सोशियोलॉजी टू मेक स्ट्रॉन्ग ट्रुथ क्लेम्स, क्योंकि प्लुरलिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स है। तो प्लुरलिटी, जैसे मान लीजिए if both a victim of domestic violence and her abuser are treated as offering equally valid standpoint, मतलब उनका भी व्यू पॉइंट देखा जा रहा है जो विक्टिम है। जैसे मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस का इशू हो रहा है, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं और जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, उनका अगर दोनों का हम स्टैंड पॉइंट ले लें एज इक्वली वैलिड, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एक एथिकल पोजीशन लेने में। इट कैन लीड टू रिलेटिविज्म, कि अगर हर नॉलेज को वैलिड माना जाए, इक्वली वैलिड, तो फिर ऑब्जेक्टिव ट्रुथ क्या है, किसको हम ट्रुथ मानेंगे? तो ये एक इशू यहाँ पर आ सकता है। फिर दूसरा बताया जा रहा है प्लुरलिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स। इन दीज सर्कमस्टेंसेस सोशियोलॉजी लूजेस एनी क्लेम टू बी एबल टू प्रोड्यूस नॉलेज दैट इज सुपीरियर टू द कॉमन सेंस नॉलेज ऑफ ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। मतलब कि if sociology just records everyone's experiences without critical evaluation, it cannot claim to produce scientific or sociological knowledge that goes beyond everyday opinion. हमने सबके ओपिनियन को ट्रुथ मान लिया, तो फिर हम कॉमन सेंस नॉलेज से ऊपर सोशियोलॉजी को एक अलग से नॉलेज का सोर्स कैसे समझाएंगे? सोशियोलॉजी वुड बी रिड्यूस टू डॉक्यूमेंटिंग ओपिनियंस रादर देन एनालाइजिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे कि पैट्रियार्की या कैपिटलिज्म। अब हम आते हैं पोस्ट मॉडर्न मेथडोलॉजी पे। पोस्ट मॉडर्न मेथडोलॉजी क्या होती है? इट रेफर्स टू रिसर्च अप्रोचेस इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? इट इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट चैलेंजेस यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ग्रैंड थ्योरीज जैसे कि फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज। इट emphasizes plurality, subjectivity and the constructed nature of knowledge. तो अब हम उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पहला की कैरेक्टरिस्टिक है नो सिंगल मेथड। नो सिंगल मेथड। सो पोस्ट मॉडर्निस्ट दे रिजेक्ट द आइडिया दैट वन रिसर्च मेथड जैसे कि सर्वेज और एक्सपेरिमेंट इज इनहेरेंटली बेटर। दे encourage multiple perspectives and methodological pluralism. So there is no one postmodern methodology. So rather than just using surveys to understand gender roles, a postmodern sociologist might combine autobiographies, personal blogs, ग्राफिटी एनालिसिस, मीम्स, सभी तरह के मेथोडोलॉजीज को वो एक कॉम्बिनेशन मेथोडोलॉजीज को यूज करेंगे ताकि वो अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव दे सकें। सो देयर इज नो वन पोस्ट मॉडर्न मेथोडोलॉजी। पोस्ट मॉडर्निज्म इज एंटी फाउंडेशनल। It does not believe in one fixed way of knowing or researching. Every research situation can use its own mix of methods.
For example, a study on urban youth identity. It might mix fashion trends, song lyrics, interviews, Instagram reels, depending on what best captures the experience. उनका कहना है कि knowledge is socially constructed. So what does it mean? Postmodernists argue that truth is not out there waiting to be discovered. जैसे कि पॉजिटिविस्ट का मानना था कि लॉज यूनिवर्सल लॉज हैं ह्यूमन सोसाइटी के विच आर डिस्कवरेबल. उनका मानना है कि कोई ऐसा कोई ट्रूथ नहीं है विच इज वेटिंग आउट देयर टू बी डिस्कवर्ड. इंस्टेड ट्रूथ इज क्रिएटेड थ्रू लैंग्वेज, कल्चर, पावर एंड इंटरैक्शंस. जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ मदरहुड. The concept of motherhood varies drastically across cultures and time. So it cannot be treated as a fixed truth. They reject the modernist claim that knowledge can be discovered using the best or correct techniques. So modernist science believes in objectivity, neutrality, standard techniques, जैसे कि experiments. पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हैं वो रिजेक्ट करते हैं इसको, सेइंग ऑल नॉलेज इज सिचुएटेड एंड कंस्ट्रक्टेड. फॉर एग्जाम्पल, अ मॉडर्निस्ट में से अ सर्वे विल ऑब्जेक्टिवली रिवील पब्लिक ओपिनियन. अ मॉडर्निस्ट में से दैट अ सर्वे विल ऑब्जेक्टिवली रिवील पब्लिक ओपिनियन. किसी टॉपिक पे आपको पब्लिक ओपिनियन चाहिए. बट अ पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्ग्यूज दैट द वे क्वेश्चंस आर वर्डेड ऑलरेडी शेप्स रिस्पॉन्सेस. मतलब लीडिंग क्वेश्चन है, जैसे आपने क्वेश्चंस को बनाया है, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन ही ऑलरेडी आपके रिस्पॉन्सेस को शेप कर रहे हैं. तो वी आर एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज. नॉलेज कोई आउट देयर नहीं है जिसको हम डिस्कवर करेंगे, हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम उसको क्रिएट करते हैं. सो नॉलेज इज क्रिएटेड, नॉट डिस्कवर्ड. जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, मेंटल इलनेस और डिवियंस. Now these are socially constructed. What counts as deviant in one culture or time उस समय के लिए may be normal in another. अब जैसे सती प्रथा कभी तो नॉर्मलाइज थी इस सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ऑफ कोर्स उसको हटाया गया, उसको कुरीति समझा गया. लेकिन एक टाइम पे उसको डिवियंस के फॉर्म में नहीं देखा जा रहा था. इमेजिन कीजिए, वो डिवियंट नहीं था और आज हम उसको एकदम कंप्लीटली डिवियंट के फॉर्म में देखते हैं. क्यों? गलत है. अब हम आते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल पोस्टमॉडर्निज्म पे. सो रिजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ. उनका कहना है कि ऑल नॉलेज इज स्टोरी टेलिंग, नॉट यूनिवर्सल ट्रुथ. इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है लियोटार्ड 1984. उन्होंने बताया कि मेटा नैरेटिव और ग्रैंड थ्योरीज आर फॉर्म्स ऑफ डोमिनेंट आइडियोलॉजी, not objective knowledge. So, Lyotard criticized meta-narratives like Marxism, positivism for pretending to offer universal truth. He argued that they actually serve powerful groups, the dominant ideology को serve करता है. For example, जो development theories हैं, development theories claim all countries must follow Western capitalist path, ignoring the indigenous ways of life. तो ये एक मेटा नैरेटिव है कि हम डोमिनेंट आइडियोलॉजी को ही एक्चुअल आइडियोलॉजी मान रहे हैं. तो लियोटार्ड का कहना है कि ग्रैंड थ्योरीज आर फॉर्म्स ऑफ डोमिनेंट आइडियोलॉजी एंड दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव ट्रुथ. No attempt should be made to try to tell that any particular stories are better than any others. तो एक तरह का ये स्टोरी टेलिंग है. हमने आपको एक स्टोरी बताई, किसी और ने अपने पर्सपेक्टिव से दूसरी स्टोरी बताई, तो कोई एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है. उनका कहना है कि no attempt should be made to try to tell that any particular stories are better than any others. So postmodernists believe that all knowledge claims should be seen as equal stories, not judged by a fixed yardstick, a fixed measure. They oppose ranking one theory over another. तो जैसे कि मान लीजिए a tribal belief system explaining illness through spirits should not be completely dismissed in favor of only biomedical explanation.
उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में भी जाकर उसके वैलिडिटी को समझना चाहिए. बोथ आर वैलिड इन देयर ओन कॉन्टेक्स्ट. कोई एक थ्योरी दूसरे थ्योरी से बेटर नहीं है, ये उनका मानना है. सो नॉलेज इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. कई बार हम लैंग्वेज को एक न्यूट्रल मीडियम के रूप में देख लेते हैं कि ये कम्युनिकेशन का मीडियम है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट समझाते हैं कि नॉलेज इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज. सो लैंग्वेज डज नॉट जस्ट डिस्क्राइब रियलिटी, इट कंस्ट्रक्ट्स इट. ये इसको बनाता है. द वर्ड्स वी यूज शेप हाउ वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. किस तरह के वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं वो हमारे वर्ल्ड के अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है, कंस्ट्रक्ट करता है. जैसे कि टर्म्स लाइक इलीगल माइग्रेंट वर्सेस रेफ्यूजी, मतलब इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं ना. दैट कैन क्रिएट वेरी डिफरेंट इमोशनल एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेस. हो सकता है कि इलीगल माइग्रेंट और रेफ्यूजी उन दोनों का अपना प्राइवेट लाइफ सिमिलर सर्कमस्टेंसेस का हो, इकोनॉमिक लाइफ सिमिलर सर्कमस्टेंसेस का हो, वो जो भी फेस कर रहे हैं वो सिमिलर हो, लेकिन जो उनको कैटेगराइज किया गया बिकॉज ऑफ वेरियस लॉज और पॉलिसीज, एक जगह पे उनको किसी को इलीगल माइग्रेंट रखा गया और किसी को रेफ्यूजी का स्टेटस दिया गया. लेकिन ये वर्ड्स यूज करने की वजह से जो उनको कैटेगराइजेशन दिया गया, दैट कैन क्रिएट वेरी डिफरेंट इमोशनल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेस, दो बोथ डिस्क्राइब पीपल क्रॉसिंग बॉर्डर्स. तो जो नॉलेज है इट इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज. ये हमारे रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है. सो लैंग्वेज इज नॉट अ न्यूट्रल मीडियम. जैसे कि हम कई बार कह देते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन वैसा नहीं है. ये एक न्यूट्रल मीडियम नहीं है. लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स बायस, इट रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी, इट रिफ्लेक्ट्स पावर स्ट्रक्चर्स, इट कैरीज मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल वर्ड्स. जैसे कि टर्म हाउसवाइफ. हाउसवाइफ एक टर्म है, लेकिन इट अज्यूम्स डिपेंडेंसी, डोमेस्टिसिटी. जैसे कि और उसको आजकल एक नया शब्द दिया गया होम मेकर. होम मेकर को ज्यादा रिस्पेक्टेबल और एक्टिव फॉर्म में देखा जाता है. तो लैंग्वेज इज नॉट अ न्यूट्रल मीडियम. लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स रियलिटी. वी एक्सपीरियंस रियलिटी थ्रू कॉन्सेप्ट्स एंड कैटेगरीज दैट लैंग्वेज प्रोवाइड्स. क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, जो हमारा थॉट्स है, उसको बोलने के लिए, उसको दूसरे व्यक्ति तक समझाने के लिए, बताने के लिए लैंग्वेज को यूज करना पड़ता है. तो लैंग्वेज ही हमको वो कॉन्सेप्ट और कैटेगरीज दे रहा है. इसीलिए हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड का, इट इज शेप्ड बाय दिस डिस्कोर्स विच लैंग्वेज प्रोवाइड्स. फॉर एग्जाम्पल, कास्ट आइडेंटिटीज जैसे कि दलित और शेड्यूल्ड कास्ट, ये सिर्फ लेबल्स नहीं है, दे रिफ्लेक्ट चेंजिंग पावर, रेजिस्टेंस, इंक्लूजन नैरेटिव्स. तो लैंग्वेज न्यूट्रल नहीं है और लैंग्वेज रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है. Why? Because meaning shift, truth becomes unstable and fluid. कितना पावरफुल लाइन है. Since language is contextual, meanings can change. Therefore, truth itself is never fixed. What is true in one context may be false in another. जैसे कि वर्ड क्यूर पहले एक थोड़ा डेरोगेटरी वे में देखा जाता था, लेकिन अब इट हैज बीन रिक्लेम्ड एज सिंबल ऑफ प्राइड. तो मीनिंग्स इवॉल्व करते हैं, शिफ्ट करते हैं, और ट्रुथ भी इसीलिए अनस्टेबल और फ्लूइड है. Therefore, all knowledge is interpretative, shaped by language, discourse, and power. Postmodernists conclude that no knowledge is purely objective. All knowledge is shaped by the language used, who controls the discourse and social power. History books often reflect the viewpoint of victors, हम जानते हैं. The dominant narrative may ignore or distort the subaltern perspectives. अब हम आते हैं फाउंडेशंस एंड टूल ऑफ पोस्ट मॉडर्न मेथडोलॉजी. पहला क्या है? डीकंस्ट्रक्शन, गिवन बाय जाक्स डेरिडा. इसका क्या मतलब है? डीकंस्ट्रक्शन इज अ मेथड introduced by Derrida. It means breaking down written or spoken text to reveal the hidden contradictions, assumptions, and power structures within them.
For example, analyzing textbooks on Indian history. It might reveal how colonial or upper caste narratives dominate, while subaltern voices, जैसे कि tribals, Dalits, women, these are sidelined. तो deconstruct करना, breaking down written or spoken text to reveal the hidden contradictions, assumptions and power structures. Involves breaking down text to expose the contradictions. दूसरा, postmodernist use deconstruction for what? To critique existing knowledge. So, deconstruction is not just literary criticism, it is a tool to challenge dominant ideologies which are embedded in mainstream knowledge. मतलब इतना ज़्यादा वो एम्बेड हो गया है कि हमें वो ऑब्वियस लगने लगता है. जैसे feminists deconstruct the idea of domesticity to show how it normalizes women's unpaid लेबर. इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि हमें दिखाई नहीं देता है, बट पोस्ट मॉडर्निस्ट डिकंस्ट्रक्शन के टूल को यूज करके हमको वो दिखाते हैं. ऑल्सो दूसरा चीज क्यों वो डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, पहला टू क्रिटिक द एग्जिस्टिंग नॉलेज और दूसरा टू क्रिएट न्यू नॉलेज स्पेशली फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज. So instead of fieldwork, postmodernists often reinterpret existing documents, books, speeches, uncovering new meanings and marginalized voices. जैसे कि Dalit scholars have reread Ambedkar's writings and colonial records to reconstruct the lived realities of caste oppression. तो ये इसका फाउंडेशन एंड टूल था. अब हम आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ एपिस्टेमोलॉजिकल पोस्टमॉडर्निज्म. तो पहला क्रिटिसिज्म क्या है, एक्यूजेशन ऑफ रिलेटिविज्म. सो इफ knowledge depends on one's view, then one person's view is as good as any other person's. If knowledge depends on one's view, then one person's view is as good as any other person's view. तो ये रिलेटिविज्म का जो एक्यूजेशन है, तो critics argue that if all truths are equally valid, then there is no objective basis to say one view is better than another. And one person's view is as good as any other person's view. इसका क्या मतलब है कि this relativism leads to intellectual paralysis, कि कोई हम पोजीशन को जज नहीं कर पा रहे. नो पोजीशन कैन बी जज्ड एज राइट और रॉन्ग. अब जैसे कि अ सोशियोलॉजिस्ट स्टडीइंग क्लाइमेट चेंज कैन नॉट से डिनालिस्ट और रॉन्ग, जस्ट डिफरेंट. हम किसी को गलत नहीं साबित कर सकते हैं एज पर पोस्ट मॉडर्निस्ट. तो फिर हम कोई क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे हैं, कोई सोशियोलॉजिस्ट, तो जो उसको डिनाई करते हैं क्लाइमेट चेंज को, उनको हम रॉन्ग नहीं ठहरा सकते हैं, सिर्फ हम कह सकते हैं उनका अलग व्यू है. सो विच इज प्रॉब्लमैटिक फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी. तो कोई ना कोई हमको स्टैंड लेना पड़ता है कि ये गलत है, ये सही है, फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग लॉज, फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग पॉलिसी. तो फिर हम आगे कैसे पढ़ेंगे. जैसे मान लीजिए कि बोथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड जस्टिफिकेशन, दोनों को हम अलग अलग पर्सपेक्टिव मान लें, जस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ये नहीं बोलें कि ये गलत है या ये सही है, उसको सिर्फ हम अलग अलग पर्सपेक्टिव मान लें, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निस्ट का मानना है कि कोई भी गलत नहीं है, सब अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हैं, अपना अपना ट्रुथ बता रहे हैं, तो कोई एक ट्रुथ दूसरे ट्रुथ से बेटर नहीं है. तो अगर हम कोई भी स्टैंड ही नहीं ले पाएंगे कि ये गलत है, ये सही है, तो फिर इट वीकेंस द मॉरल बेसिस फॉर सोशल रिफॉर्म. पॉलिसीज कैसे आएंगी जो कि चेंज लाएंगी. तो ये रिलेटिविज्म का पहला एक्यूजेशन है. दूसरा, अंडरमाइंस क्राइटेरिया फॉर इवेलुएटिंग ट्रुथ. If all knowledge is just a narrative, एक स्टोरी टेलिंग है, तो हाउ कैन वी जज वेदर साइंटिफिक फैक्ट, सोशल थ्योरीज और इवन ह्यूमन राइट्स आर वैलिड. मतलब सब तो एक स्टोरी टेलिंग है. तो पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स थ्राइव्स व्हेन पीपल थिंक फैक्ट्स आर जस्ट ओपिनियंस. ये आजकल ट्रुथ के बाद पोस्ट ट्रुथ आ गया है, आप पढ़ते होंगे ट्रुथ एंड पोस्ट ट्रुथ. तो पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स थ्राइव्स व्हेन पीपल थिंक फैक्ट्स आर जस्ट ओपिनियंस. तो इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम ट्रुथ को कैसे इवेलुएट करें. इट अंडरमाइंस द क्राइटेरिया फॉर इवेलुएटिंग ट्रुथ. इट रिस्क्स कोलैप्सिंग इनटू एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिज्म. इसका क्या मतलब है, निहिलिज्म का क्या मतलब है. निहिलिज्म मींस बिलीफ इन नथिंग, किसी भी चीज में हम बिलीव नहीं कर रहे हैं. तो ऐसा लग रहा है कि फाइनली हम इसी पॉइंट पे आ जा रहे हैं, क्योंकि हमने सभी को कह दिया कि सब स्टोरी टेलिंग है, कोई एक ट्रुथ किसी दूसरे ट्रुथ से बेटर नहीं है. तो बहुत हद तक तो ये सही लग रहा था, लेकिन जब हम इसको
एक पोजीशन हमको लेना है, चाहे लॉ क्रिएट करने के लिए या रिफॉर्म के लिए या पॉलिसी के लिए, तो फिर कैसे करेंगे हम, क्योंकि हम एक ग्राउंड पे तो आ नहीं पा रहे हैं. देयर इज नो बेसिस टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग, ट्रुथ फ्रॉम फिक्शन. तो करें कैसे? Now, postmodern relativism can lead to cynical rejection of all truth claims, leaving no ground for social action or justice. Saying everything is constructed may make people apathetic about fighting poverty or patriarchy as if all views are just stories. हमने कह दिया कि सब कंस्ट्रक्टेड है, कुछ भी एक्चुअली कोई ऐसा रियलिटी आउट देयर नहीं है जिसको ऑब्जेक्टिवली हमको डिस्कवर करना है, सब कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है. तो एक टाइम आ सकता है कि एक निहिलिज्म आ जाए, मतलब बिलीफ इन नथिंग, वेयर पीपल बिकम एपैथेटिक अबाउट फाइटिंग पॉवर्टी और पेट्रियार्की, क्योंकि सभी तो एक स्टोरी टेलिंग है, एक व्यू ही है, एक पर्सपेक्टिव ही है, कोई बेसिस नहीं है टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग, ट्रुथ फ्रॉम फिक्शन. सो पोस्ट मॉडर्निज्म कैन ब्लर द लाइन्स बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन. That can be dangerous, especially in moral and policy debates. अब हम आते हैं रिजेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी. तो हमने अभी यहाँ पे क्या देखा था? फाउंडेशंस इन टूल, जिसमें मेन टूल है डिकंस्ट्रक्शन. फिर हमने देखा क्रिटिसिज्म ऑफ एपिस्टेमोलॉजिकल पोस्ट मॉडर्निज्म. मेन क्रिटिसिज्म है रिलेटिविज्म का और एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिज्म का. और फिर अब हम आएंगे रिजेक्शन ऑफ कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी. सो मैट्स एल्विसन इन 2002, ही इज द की कंट्रीब्यूटर इन दिस. वो इसका एक तरह से डिफेंड कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्न को, और कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी को रिजेक्ट कर रहे हैं. उनका क्या कहना है कि मैट्स एल्विसन सपोर्ट्स rethinking traditional sociological methods using postmodern insights. So he believes postmodern insights can enrich research and offer new ways of interpreting social reality. He encourages taking postmodern ideas as provocations, challenges, inspiration for deeper qualitative work. So postmodernism opens doors for new methods, for example storytelling, visual analysis, diary studies, and rethinking how power, culture and subjectivity they shape data. For example, अगर आपको अर्बन स्लम लाइफ को स्टडी करना है, तो आप सिर्फ स्टेटिस्टिक्स से नहीं जाएंगे, आप वहाँ के लोकल सॉन्ग्स, वहाँ के वॉल आर्ट, वहाँ का स्लैंग सबको समझेंगे. तो ये आपको नए तरीके देता है टू इंटरप्रेट सोशल रियलिटी. और इट इनकरेजेस टेकिंग पोस्ट मॉडर्न आइडियाज, ही इनकरेजेस टेकिंग पोस्ट मॉडर्न आइडियाज एज प्रोवोकेशंस. तो इसका क्या मतलब हुआ कि एल्विसन डजंट से कि abandon all structure. He says use postmodernism to push boundaries, challenge your assumptions, listen to the silenced, marginalized voices, be more creative in how you know what you know, be more creative in how you know what you know. For example, a study on Indian masculinity. A study on Indian masculinity might use film dialogues, Instagram memes, personal interviews, political speeches to explore its complexity. तो पोस्ट मॉडर्न आइडियाज हमें हेल्प करता है कि हम अपने बाउंड्रीज को, अपने assumptions को चैलेंज करें, पुश करें, इंस्पिरेशन देता है हमको डीपर क्वालिटेटिव वर्क के लिए, ऐसा मैट्स एल्विसन बता रहे हैं. अब आते हैं लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी पे. Neo-positivist view. Neo-positivist view assumes there is a single reality that can be discovered via scientific tools. और हमने इंटरप्रेटिविस्ट व्यू पहले भी देखा था कि it sees knowledge as constructed by the meanings people give to experiences. और वो सभी लोगों के सब्जेक्टिविटी को एक्नॉलेज करते हैं. बट पोस्ट मॉडर्न, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि इवन क्वालिटेटिव इंटरव्यूज में नॉट रिफ्लेक्ट रियलिटी. तो न्यू पॉजिटिविस्ट व्यू कहते हैं कि एक सिंगल रियलिटी है जिसको हम डिस्कवर कर सकते हैं. बट पोस्ट मॉडर्निस्ट, उनका कहना है कि इवन क्वालिटेटिव इंटरव्यूज में नॉट रिफ्लेक्ट रियलिटी. क्यों? क्योंकि interviews are shaped by power relations. So interview data becomes a story, not a mirror of truth. So postmodernists argue that interviews don't reveal truth, but narratives shaped by power, language and social context. जैसे मान लीजिए कि कोई अर्बन रिसर्चर है और वो एक अपर मिडिल क्लास के अर्बन रिसर्चर हैं और वो रूरल सेटिंग में जाके इंटरव्यू यदि ले रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट पर, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आएंगे इस तरह के डिफरेंसेस, ये डिफरेंशियल्स होंगे ऑफ पावर रिलेशंस, ऑफ पोजीशन,
ऑफ क्लास, ऑफ इवन कास्ट भी हो सकता है। तो ये इन चीज़ों से इंटरव्यूज जो हैं शेप्ड होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ जिसकी हम खोज कर रहे हैं एज पर पॉजिटिविस्ट वो वहां पर हमको मिले। सो इंटरव्यू डेटा नाउ बिकम्स अ स्टोरी, नॉट अ मिरर ऑफ ट्रुथ। सो इंटरव्यू शुड नॉट बी सीन एज मिरर्स ऑफ रियलिटी बट एज कंस्ट्रक्टेड narratives which is influenced by the interviewer's language, context। अब जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, तो पॉलिटिकल वर्कर्स से अगर इंटरव्यू लेंगे तो दे में एग्जैजरेट देयर पार्टीज अचीवमेंट्स डिपेंडिंग ऑन हु इज आस्किंग। द इंटरव्यू बिकम्स अ परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट अ फैक्ट और अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रुथ। अब इसी को एल्विसन्स ने, जो पहले हमने देखा था मैट्स एल्विसन, उन्होंने समझाया है एल्विसन्स यूज ऑफ फॉर एग्जांपल ऑफ इंटरव्यूज टू शो why data produced in research cannot be seen as objective reflection of reality but the outcome of multitude of processes. So Matt Alvison shows that interviews produce layered complex stories, not the raw truth। उसको वो यहाँ पे समझा रहे हैं कैसे। पहला, इंटरव्यूज मतलब जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है मे कंस्ट्रक्ट स्टोरीज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल और सोशल रियलिटी। जैसे पीपल स्पीक फ्रॉम देयर लिव्ड पोजीशन, कैसे वो जी रहे हैं इन सोसाइटी। सो दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑफ कोर्स बाय क्लास, कास्ट, जेंडर, द पॉलिटिक्स। तो इलेक्शंस के टाइम में मान लीजिए इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो कोई कह सकते हैं फॉर कि वो जॉब लाए, दूसरा आदमी कह सकता है कि उन्होंने जॉब ले लिए। तो नाउ बोथ दीज स्टोरीज आर शेयर्ड बाय सोशल एंड पॉलिटिकल पोजीशंस द पीपल द रिस्पोंडेंट्स आर टेकिंग। Number two, interview results are shaped by ethnicity, gender, political orientation. The same question asked by a man वर्सेस अ वुमन, और इन लैंग्वेज भी मैटर करता है, इंग्लिश में पूछा जा रहा है या लोकल डायलेक्ट में पूछा जा रहा है, दैट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट आंसर्स। जैसे कि एक वुमन में ओपन अप मोर अबाउट डोमेस्टिक अब्यूज टू अ फीमेल इंटरव्यूअर दैन टू अ मेल वन। Interviews should be studied for how meanings are negotiated, not just what is said। किस तरह से मतलब सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे क्या बोला जा रहा है, सिर्फ उसी को नहीं देखना चाहिए, कैसे चीजों को नेगोशिएट किया जा रहा है, कैसे आंसर्स तक पहुंचा जा रहा है, कैसे मीनिंग्स क्रिएट किए जा रहे हैं, उनको भी देखना जरूरी है। सो पोस्ट मॉडर्निस्ट अर्ज अस टू एनालाइज द प्रोसेस। इंटरव्यू के एंटायर प्रोसेस मतलब किसी भी मेथड के एंटायर प्रोसेस को समझना है, नॉट जस्ट द फाइनल ट्रांसक्रिप्ट। हाउ वर्ड्स आर चोजन, हाउ मीनिंग्स आर शेप्ड इन द इंटरेक्शन, किस तरह से इंटरेक्शन का प्रोसेस हो रहा है उसको भी समझना जरूरी है, कैसे कौन से वर्ड्स कैसे चूज किए जा रहे हैं। सो इन एन इंटरव्यू द डेटा में सिंपली रिफ्लेक्ट डोमिनेंट डिस्कोर्सेस इन सोसाइटी। Often people repeat the dominant social narratives like nationalism, masculinity, or success, not because they believe in them, but because they feel compelled to say them, क्योंकि वही dominant narrative है। जैसे कई बार जो यूथ है, मेनी यूथ दे में से इंजीनियरिंग इज द बेस्ट करियर, तो अभी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, दैट माइट नॉट बी फ्रॉम एक्सपीरियंस बट बिकॉज इट इज अ डोमिनेंट डिस्कोर्स इन अर्बन इंडियन मिडिल क्लास, उनको वही बताया गया है, तो वही उनके पास उनको एक कंपेल्ड हो जाते हैं वही कहने के लिए। सो इन एन इंटरव्यू द डेटा में सिंपली रिफ्लेक्ट द डोमिनेंट डिस्कोर्स इन रियलिटी। तो इसीलिए वो समझा रहे हैं कि सो रिसर्चर मस्ट बी अवेयर ऑफ लिमिटेशंस ऑफ इंटरव्यूज, मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन देयर रोल एंड embrace uncertainty। So researchers must be so postmodern researchers practice reflexivity, that means they examine how their own identity, bias and choice shape research। They accept that uncertainty is part of truth seeking। ये पोस्ट मॉडर्निज्म में बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए इफ अ रिसर्चर इज फ्रॉम दिल्ली एंड इंटरव्यूज माइग्रेंट्स इन बिहार, देन देयर अर्बन बैकग्राउंड विल शेप हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड अंडरस्टूड। ये उनको खुद को भी समझना पड़ेगा इंटरव्यूअर को कि मेरे खुद के बैकग्राउंड कैसे मेरे क्वेश्चंस को, कैसे मेरे ओपिनियंस को अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे इस इंटायर इंटरव्यू प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसी को रिफ्लेक्सिव प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी अज्यूम करता है कि एक सिंगल रियलिटी है, लेकिन पोस्ट मॉडर्न चैलेंज करता है कि ये सिंगल रियलिटी जिसको आप इवन इंटरव्यू के प्रोसेस को भी ये रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये पावर रिलेशन से जुड़ा हुआ है इसका इंटायर डिस्कोर्स। और उसको मैट्स एल्विसन ने
पूरा समझाया है क्यों होता है, क्योंकि एक इंटरव्यूज जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो अपने रियलिटी के हिसाब से जवाब देते हैं। कई बार उनका एथनिसिटी, जेंडर, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन ये भी जवाब का हिस्सा बन जाता है। और सिर्फ इंटरव्यू के सुपरफिशियल मीनिंग को नहीं समझना है, उस क्वेश्चन के आंसर तक इंटरव्यू के प्रोसेस के कंप्लीट इंटरेक्शन के दौरान कैसे पहुंचा जा रहा है, कैसे मीनिंग को नेगोशिएट करके वहां तक पहुंचा जा रहा है, उसको भी समझना है। और कई बार इंटरव्यू बस डोमिनेंट आई डिस्कोर्स सोसाइटी को ही रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि जिनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है उनको वही मतलब सोसाइटी के हिसाब से वही जैसे ऑप्शंस मिले हुए हैं, तो वही चीज बताना, जैसे मैंने इंजीनियरिंग वाला एग्जांपल दिया है। तो रिसर्चर क्या करेंगे, रिसर्चर इन लिमिटेशंस को अवेयर रहेंगे, उसको वो समझेंगे कि हाँ ये लिमिटेशंस हैं, और उसको उस पर वो रिफ्लेक्ट करेंगे, समझेंगे कि जो जवाब दिया जा रहा है दे मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दैट, मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन देयर रोल एंड एम्ब्रेस दिस अनसर्टेनिटी। इसी को रिफ्लेक्सिव प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन पे पोस्ट मॉडर्न मेथोडोलॉजी के। पोस्ट मॉडर्न मेथोडोलॉजी शिफ्ट्स फोकस फ्रॉम व्हाट इज ट्रू टू हाउ नॉलेज इज प्रोड्यूस्ड। मतलब ट्रुथ सीकिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं किया जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि नॉलेज आखिरकार कंस्ट्रक्ट या क्रिएट कैसे हो रहा है। Postmodernists do not aim to find absolute truths. Instead, they question how knowledge comes to be seen as truth, exposing the social, political and linguistic forces behind it. कैसे knowledge ये प्रोड्यूस हुआ उसी को समझने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे इन ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स सक्सेस में बी क्लेम्ड बेस्ड ऑन ऑफिशियल डेटा, लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट पूछेंगे कि हु प्रोड्यूस्ड दिस डेटा, What voices were left out? What methods created this truth? ये जो डेटा जिसको आप ऑब्जेक्टिव ट्रुथ मान रहे हैं, ये कैसे क्रिएट हुआ, उनका सवाल इस पर ज्यादा रहेगा। सो दे इनकरेज रिफ्लेक्सिविटी, प्लूरलिज्म एंड क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ पावर इन नॉलेज क्रिएशन। ये हमको अपने बायसेस, अपने अजम्पशंस को क्वेश्चन करने के लिए मजबूर करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी ये वर्ड बार बार अभी आ रहा है शुरू से ही, इसको यहाँ पर भी रिफ्लेक्सिव प्रैग्मेटिज्म भी हमने देखा था। रिफ्लेक्सिविटी होता क्या है? रिफ्लेक्सिविटी मींस रिसर्चर्स मस्ट एग्जामिन देयर ओन रोल, आइडेंटिटी, इन्फ्लुएंस। मतलब इस अनसर्टेनिटी को उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जब वो रिसर्च के प्रोसेस में रिसर्चर भी हिस्सा है तो उनको खुद अपना पोजीशन, अपना रोल, अपनी आइडेंटिटी और वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस इंटायर प्रोसेस को, इसको भी ध्यान में, इसकी अवेयरनेस उनको रखनी होगी। ये है रिफ्लेक्सिविटी। प्लूरलिज्म क्या होता है? प्लूरलिज्म मींस एक्सेप्टिंग मेनी व्यू पॉइंट्स, नॉट वन फिक्स्ड रियलिटी। बहुत सारे व्यू पॉइंट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर चीज के। एंड क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ पावर इन नॉलेज क्रिएशन। क्रिटिकल अवेयरनेस मींस रिकॉग्नाइजिंग दैट पावर, फॉर एग्जांपल मीडिया का पावर, स्टेट का पावर, पट्रियार्की का पावर, विच दैट शेप्स व्हाट काउंट्स एज नॉलेज। जिसको हम नॉलेज मान रहे हैं वो बन कैसा रहा है, इन चीजों को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन अपर कास्ट मेल रिसर्चर इज स्टडिंग दलित women's access to sanitation, postmodernism demands reflexivity। मतलब वो इस चीज को समझे, how does his own identity shape what is asked, what is understood, what is being reported। ये अवेयरनेस उनमें होनी चाहिए। अब हम आते हैं एक समरी पर, मॉडर्निस्ट व्यू और पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू। पोस्ट मॉडर्न मेथोडोलॉजी का एक कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि अभी तक जो मॉडर्निस्ट व्यू था और पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू में क्या अंतर है। तो ट्रुथ की अगर बात करें तो मॉडर्निस्ट व्यू मानता है, मतलब जो पॉजिटिविज्म में हमने देखा कि एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है जिसको हमको डिस्कवर करना है। और पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू मानता है कि ट्रुथ ऐसा कोई डिस्कवर करना, देयर इज नो ट्रुथ आउट देयर व्हिच हैज टू बी डिस्कवर्ड। ट्रुथ जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है और मल्टीपल है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है और मल्टीपल है। जो हमने देखा था स्टोरी टेलिंग की, हर कोई अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हैं और एक स्टोरी दूसरी स्टोरी से बेटर नहीं है। फिर आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज को जो मॉडर्निस्ट व्यू है न्यूट्रल समझता है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट कहता है कि यही तो रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ये हमने देखा भी। मेथोडोलॉजी के देखें तो मॉडर्निस्ट व्यू मानता है सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, और पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू मानता है डिकंस्ट्रक्टिव, इंटरप्रेटिव, कि उसके मीनिंग को समझना है, कैसे लोग अपने सोशल वर्ल्ड को नेविगेट कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, उसके मीनिंग को समझना होगा। इवैल्यूएशन मतलब मॉडर्निस्ट व्यू का एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है, जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू का प्लूरलिज्म में बिलीव करता है, रिफ्लेक्सिविटी में बिलीव करता है। और गोल क्या है मॉडर्निस्ट व्यू का? कि हमको एक एक्सप्लेनेशन देना है, कॉज इफेक्ट, जो हमने पहले भी देखा था पॉजिटिविस्ट वाले लेक्चर में मेथोडोलॉजी के,
कि प्रिडिक्ट करना है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप निकाल के, जबकि यहाँ पे है क्रिटिक करना है, और ये है कि हमारे अजम्पशंस बायसेस को क्वेश्चन करना, प्रोवोकेट करना, ये प्रोवोकेशन पे है। इसी का इंडियन एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है कि जैसे कि मॉडर्निस्ट व्यू देखें यहाँ पे, तो सेंसस क्लेम करता है कि X% लिटरेसी रेट है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है जिसको हमने डिस्कवर किया बाय सेंसस। और पोस्ट मॉडर्निस्ट तब क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि हाउ वाज लिटरेसी डिफाइंड, ये क्वेश्चन करेगा, वो ट्रुथ कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ उसको ही क्वेश्चन करेगा, हाउ वाज लिटरेसी डिफाइंड एंड हु वाज काउंटेड। अब जब यहाँ पे लैंग्वेज का देखें, तो जब मॉडर्निस्ट व्यू उसको न्यूट्रल मानता है, तो जैसे इंटरव्यू क्वेश्चंस आर टेकन एट फेस वैल्यू, लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट में कैसे हो रहा है, लैंग्वेज यूज्ड इन आंसर्स इज एनालाइज्ड फॉर हिडन मीनिंग्स, कैसे क्वेश्चंस को पोज किया गया है, कैसे क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, क्या लैंग्वेज उसमें यूज किया गया, क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं, इसको भी एनालाइज किया जा रहा है, डीकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसके पीछे के हिडन मीनिंग को समझने के लिए। फिर मेथडोलॉजी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मॉडर्निस्ट व्यू में एग्जांपल लेते हैं सर्वेज ऑन चाइल्ड मैरिज, लेकिन यहाँ पे जब आएंगे तो एथनोग्राफिक अकाउंट शोइंग कल्चरल नैरेटिव्स ऑन मैरिज, ये आप एग्जांपल ले सकते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू का, कि वो एकदम डिटेल में जाके मतलब यहाँ पे हो सकता है सिर्फ सर्वे ले लिया जाए चाइल्ड मैरिज का कि कितने चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसको कल्चरल लेवल पे जाके समझने की कोशिश किया जाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर इवेल्युएशन की बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ मॉडर्निस्ट व्यू एक फिक्स क्राइटेरिया लेके चलता है कि प्रोजेक्ट का सक्सेस इज इक्वल टू टारगेट अचीव्ड, कि अगर कोई प्रोजेक्ट, जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट लिया है विमेन से संबंधित, तो उसमें कुछ टारगेट बनाए गए थे, कुछ परसेंटेज, अगर वो अचीव हो गया तो सक्सेसफुल है। लेकिन यहाँ पे कैसे देखा जाता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट इज क्रिटिक्ड फॉर इग्नोरिंग विमेन्स वॉइसेस और ऑल्टरनेटिव गोल्स, उसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिटिक किया जाएगा, समझा जाएगा अलग अलग पर्सपेक्टिव से कि कैसे किसी पर्टिकुलर वॉइसेस को मार्जिनलाइज कर दिया गया, उसको नहीं लिया गया। और गोल की बात करें, तो मान लीजिए मॉडर्निस्ट व्यू जो है वो वोटर बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर रहा है, तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप निकाल के एक प्रेडिक्शन किया जाएगा, बट यहाँ पे देखा जाएगा कि हाउ मीडिया, कास्ट, जेंडर, दे आर शेपिंग द वोटिंग नैरेटिव्स। तो ये एग्जांपल से आप इनको, इसके कंपैरिजन को और अच्छे से समझ सकते हैं। So now we have completed the critical social science research methodology, feminist methodology and postmodern. Now we go to the other non-positivist methodologies in brief. इसके लिए मैंने इंटरनेट को एज रिसोर्स लिया है, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि एथनो मेथोडोलॉजी चूंकि बहुत बड़ा हो गया था, मुझे लगा कि उसका एक इंडिपेंडेंट अपना सेपरेट लेक्चर ही होना चाहिए, उसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे अभी हम जो कुछ नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी मैंने देखा है कि क्वेश्चंस में आ रहे हैं यूपीएससी के, उसको हम ब्रीफली यहाँ पे देखेंगे। तो उसमें पहला है ड्रामेटर्जिकल मेथोडोलॉजी। हम कौन कौन से मेथोडोलॉजी देखेंगे अभी, पहला ड्रामेटर्जिकल, उसके बाद में एथनोग्राफी, फिर है ऑटो एथनोग्राफी, उसके बाद नैरेटिव मेथोडोलॉजी, और फिर है ग्राउंडेड थ्योरी। इन सभी को हम देखेंगे इन अदर नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर ड्रामेटर्जिकल से। तो ड्रामेटर्जिकल मेथोडोलॉजी के पायनियर है एर्विंग गॉफमैन। इनका की आइडिया क्या था, पहले Goffman is a sociologist who introduced the idea of analyzing social interactions as if they were theatrical performances. उन्होंने अपने बुक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ उसमें इस मेथड को बताया है। तो इसमें की आइडिया क्या था कि सोशल लाइफ इज लाइक अ स्टेज प्ले, पीपल परफॉर्म रोल्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, जिसको फ्रंट स्टेज नाम दिया गया है, एंड रिलैक्स और प्रिपेयर बिहाइंड द सीन बैक स्टेज। सो गॉफमैन सीज एवरीडे सोशल बिहेवियर एज परफॉर्मेटिव। फ्रंट स्टेज कहाँ क्या है, वेयर वी मैनेज इम्प्रेशंस एक्टिवली, एंड बैक स्टेज वेयर वी लेट गो एंड आर मोर ऑथेंटिक। एग्जाम्पल, जैसे कि अ टीचर इन क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो दे स्पीक क्लियरली, दे कंट्रोल द इमोशन,
ये है फ्रंट स्टेज। लेकिन वही सेम टीचर जब स्टाफ रूम में होते हैं तो दे वेंट देयर फ्रस्ट्रेशन, दे जोक अबाउट थिंग्स, तो वो होता है बैक स्टेज, जहाँ पे वो ज्यादा ऑथेंटिक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है? व्हाट इट शोज, हाउ पीपल मैनेज impressions in everyday life, how we act confident in interviews, polite in public, etc. तो people consciously control how they appear to others, especially in social situations like interviews, meetings और public gatherings. यहाँ पे हम अपने फ्रंट स्टेज पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्माइलिंग वाइल बीइंग स्कोल्डेड बाय बॉस, तो वहाँ पे हमको अपने इमोशंस को कंट्रोल किए रहना होता है। स्पीकिंग पोलाइटली टू अ कस्टमर डिस्पाइट पर्सनल स्ट्रेस, ये तो कई बार होता है। इसको इमोशनल लेबर का नाम भी दिया जाता है। मेथड, ऑब्जर्विंग रियल लाइफ इंटरैक्शंस इन नेचुरल सेटिंग्स। इसको हम स्टडी कैसे करेंगे ड्रामेटोलॉजिकल मेथोडोलॉजी में? हमारे मेथड क्या होंगे? ऑब्जर्विंग रियल लाइफ इंटरैक्शंस इन नेचुरल सेटिंग्स, जैसे कि ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, फैमिलीज। तो ड्रामेटर्जिकल रिसर्च रिक्वायर्स ऑब्जर्विंग पीपल इन देयर एवरीडे इन्वायरमेंट्स, उनके नेचुरल सेटिंग में, सीइंग हाउ दे मैनेज रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जैसे वॉचिंग हाउ नर्स टॉक्स टू पेशेंट्स, वो फ्रंट स्टेज हुआ, एंड हाउ शी टॉक्स टू कॉलीग्स प्राइवेटली, वो उनका बैक स्टेज हुआ। फॉर एग्जाम्पल अ वेटर स्माइलिंग एट कस्टमर्स, front stage, but getting frustrated in the kitchen, backstage. So this is the perfect illustration of Goffman's idea. Social roles requires us to act a certain way, even if our real feelings are different. और एग्जाम्पल में देख सकते हैं कॉल सेंटर एम्प्लॉय इन इंडिया यूजिंग एन अमेरिकन एक्सेंट। उनको यूज करना पड़ता है क्योंकि उनके कस्टमर्स अमेरिकन होते हैं कई बार, तो अमेरिकन एक्सेंट में बात करें, स्टेइंग चीयरफुल विद फॉरेन कस्टमर्स, बट लेटर दे शेयर देयर एग्जॉशन विद कॉलीग्स ड्यूरिंग अ ब्रेक। तो ये हमारा हो गया ड्रामेटोलॉजिकल मेथोडोलॉजी बाय एर्विंग गॉफमैन, फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज। उसके बाद हम आते हैं एथनोग्राफी पे। एथनोग्राफी ये जो है, ये मेथोडोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी से है। तो एथनोग्राफी originated in anthropology, where it was used to study remote tribes and traditional communities. It was later adapted into sociology to study all kinds of social groups. तो what it does, यहाँ पे डीप लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ अ कम्युनिटी और कल्चर किया जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे कि मेलविनोस्की एंड सोशियोलॉजिस्ट जैसे कि एम एन श्रीनिवास, दे हैव यूज्ड इट एक्सटेंसिवली इन फील्ड वर्क। यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टडी किया जाता है कम्युनिटी या कल्चर वहां पे रह के। सो एथनोग्राफी इज नॉट अबाउट क्विक सर्वे और स्टेटिस्टिक्स, इट रिक्वायर्स इमर्शन, वहां पे जाके रहना होता है ओवर मंथ्स और ईयर्स इन द कम्युनिटी बीइंग स्टडीड। की आइडिया क्या है इसका? टू ट्राई टू ट्रूली अंडरस्टैंड अ ग्रुप, the researcher must live among them, observe them closely and become part of their world. So ethnographers, they blend in, they eat, talk and live like the people they are studying. This helps them to see the world from their group's perspectives. उनके नजरिए से उसको वो समझ पाते हैं, उनके साथ वो रहते हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू स्टडी फिशरमैन इन केरला, so you have to go there with them, live with them, go on boat trips with them and stay in their village, तभी आप उसको इतने डीप लेवल पे समझ पाइएगा। फेमस एग्जाम्पल है ब्रॉन्सलॉ मेलिनोस्की स्टडी ऑफ ट्रोबरलैंड आइलैंडर इन द साउथ पैसिफिक। ही लिव्ड विद देम एंड डॉक्यूमेंटेड देयर कूला एक्सचेंज सिस्टम। अच्छा सॉरी, मिस हो गया था। मेथड क्या है इसका? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने अभी बताया कि आइडिया क्या है, यू हैव टू लिव अमंग देम। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? द रिसर्चर पार्टिसिपेट्स इन डेली लाइफ, वो फील्ड नोट्स लेते हैं, इनफॉर्मल इंटरव्यूज होता है। सो द रिसर्चर पार्टिसिपेट्स इन डेली लाइफ। दिस इज द मेन टेक्निक ऑफ एथनोग्राफी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग एंड इंगेजिंग इन एक्टिविटीज। और फील्ड नोट्स का मतलब क्या हुआ कि उनके अपने डेली रिटन रिफ्लेक्शंस, डेली क्या वो
रिसर्चर कर रहे हैं उसको वो लिखते हैं। और इनफॉर्मल इंटरव्यूज मतलब नेचुरल कॉन्वर्सेशंस, उनके सेटिंग में जाके, उनके नेचुरल सेटिंग में जाके, कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट या फॉर्मेट टाइप का कोई इंटरव्यू नहीं, उनके नेचुरल कॉन्वर्सेशन में। जैसे मान लीजिए आपको झारखंड में किसी ट्राइबल ग्रुप के को स्टडी करना है, तो उनके साथ जब आपके रहेंगे, उनको डेली क्या कार्य हो रहा है उसको लिखेंगे, एंड हाउ दे परफॉर्म द रिचुअल्स और हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब हर दिन के उनके दिनचर्या को समझने के लिए आपको वहां पर जाकर एक ऑब्जर्वर को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसी को पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड जो यहाँ पे यूज होता है। अब कुछ फेमस एग्जाम्पल, जैसे कि ब्रॉन्सलो मेलिनोस्की का स्टडी ऑफ द ट्रॉबियंड आइलैंडर इन द साउथ पैसिफिक। तो ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है एथनोग्राफी का। सो मेलिनोस्की लिव्ड फॉर इयर्स अमंग द ट्रॉबियंड आइलैंडर्स स्टडिंग देयर सोशल लाइफ। उसको उन्होंने वहां जाके रह के पढ़ा और समझा। हिज वर्क इज सीन एज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च। He rejected the idea of primitive people, so-called primitive people, being irrational. Instead, he showed their lives were highly organized. मतलब हमारे जो assumptions होते हैं कि फलाना जो है सोसाइटी से, मतलब मॉडर्न सोसाइटी से, सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी से अलग है, तो वो एक प्रिमिटिव वे ऑफ लाइफ जी रहे हैं। तो क्या प्रिमिटिव है, क्या मॉडर्न है, क्या रैशनल है, क्या इरेशनल है, इसको वहां पे जाके एक इमर्सिव मेथोडोलॉजी में जाके रहकर उन्होंने इसको क्वेश्चन किया। और इस प्रिमिटिव वाले जो कॉन्सेप्ट है कि वो इरेशनल है, इसको टोटली उन्होंने निगेट किया। उन्होंने बताया कि उनका लाइफ कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो ही लिव्ड विद देम एंड डॉक्यूमेंटेड देयर कूला एक्सचेंज सिस्टम। ये एग्जांपल हमें आप दे सकते हैं, ये हमेशा यूज किया जाता है इसमें। अ कॉम्प्लेक्स सेरेमोनियल गिफ्ट एक्सचेंज दैट रीइंफोर्स्ड सोशल बॉन्ड्स, ट्रस्ट एंड हायरार्की, नॉट जस्ट इकोनॉमिक फंक्शन। तो मेलिनोस्की डिस्कवर्ड दैट द कूला रिंग वाज नॉट मियर बार्टर, it was ritualistic and helped maintain trust and relationship across islands. तो इसमें क्या होता था, एल्डर मैन एक्सचेंज्ड डेकोरेटिव आइटम्स टू मेंटेन अलायंसेस, मच लाइक गिफ्ट गिविंग। जैसे इंडियन वेडिंग में होता है कि जो दोनों साइड, ब्राइड एंड ग्रूम के दोनों साइड एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। सो दिस इज मच लाइक द गिफ्ट गिविंग ड्यूरिंग इंडियन वेडिंग्स विच रीइंफोर्सेस द फैमिली टाइज। It showed that even so-called primitive societies have rational and structured systems of economy, politics and kinship. उनकी जो जरूरत है उसके हिसाब से उन्होंने उसको स्ट्रक्चर किया हुआ है। So contrary to the colonial beliefs that the tribal societies weren't logical, they were chaotic, illogical. They had their own rules, hierarchy, systems of governance, जो उनको जरूरत थी उस हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ था। अब जैसे इंडिया में गॉन्ड्स हैं, टोडाज हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से लैंड, मैरिज, लीडरशिप सबके डिटेल रूल बनाए हुए हैं। तो उनके कॉन्टेक्स्ट में जाके चीजों को यदि समझना है, तो आप अगर वहां जाके रहकर समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से उनको बढ़िया से समझ पाएंगे। अब इंडियन सोशियोलॉजी में एथनोग्राफी इज यूज्ड इन विलेज स्टडीज, फॉर एग्जांपल बाय एम एन श्रीनिवास। या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में भी एथनोग्राफी का यूज होता है, डिविएंट सब कल्चर्स में, स्पेशली जैसे गैंग्स, ड्रग यूजर्स, विजिलेंट ग्रुप्स। तो एथनोग्राफी मूव, पहले सिर्फ एथनोग्राफी को ट्राइबल स्टडीज में यूज किया जा रहा था, लेकिन इट हैज नाउ मूव्ड फ्रॉम स्टडिंग ट्राइब्स टू विलेजेस। जैसे कि कास्ट समझना है, मैरिज समझना है, तो वहाँ इस एथनोग्राफी को इसमें भी विलेज स्टडीज में यूज किया गया, जैसे मैंने बताया एम एन श्रीनिवास के द्वारा यूज किया गया है। एम एन श्रीनिवास लिव्ड इन रामपुरा विलेज टू स्टडी कास्ट मोबिलिटी, जो उनका बहुत फेमस संस्कृताइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, ये विलेज स्टडीज के द्वारा ही किया गया था। फिर ऑर्गेनाइजेशंस को भी यदि समझना है, टू स्टडी पावर, कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशंस, तो वहां पर भी एथनोग्राफी को यूज किया जाता है। और सब कल्चर्स, टू स्टडी डिवियंस, तो वहां पे भी गैंग्स, जैसे एक एग्जांपल है सुधीर वेंकटेश। सुधीर वेंकटेश इन्होंने ब्लैक गैंग्स इन यूएस उसको स्टडी किया वहां पर रहकर, बाय लिविंग विद देम। तो इन चीजों में आप एथनोग्राफी को यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने दो जो है देखा है, ड्रामेटर्जिकल मेथोडोलॉजी और एथनोग्राफी। एथनोग्राफी से ही जुड़ा हुआ एक है ऑटो एथनोग्राफी। ऑटो एथनोग्राफी, ऑटो एथनोग्राफी क्या है? The researcher uses their own personal life as research data. Now, autoethnography involves using your own life story, feelings, struggles, and experiences as primary data for research. It blurs the boundary between researcher and subject. ये काफी इंटरेस्टिंग है।
अभी तक हमने इस तरह से नहीं देखा था। हम हमेशा समझ रहे थे कि रिसर्चर और जिन पर रिसर्च किया जा रहा है वो अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटीज है, बट यहाँ पे ये मर्ज हो जाता है। सो जैसे मान लीजिए कोई दलित वुमेन है, उनको अगर हाउ कास्ट अफेक्ट्स हर एक्सपीरियंस इन एलिट इंस्टीट्यूशंस, मान लीजिए वो पढ़ने के लिए बहुत एलिट इंस्टीट्यूशंस में गई हैं, IIT जैसा कहीं भी, तो वहां पर वो अपने पर्सनल लाइफ को एक रिसर्च के फॉर्म में लिख सकते हैं कि उनके अपने क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, कि हाउ कास्ट अफेक्टेड हर और हिज एक्सपीरियंस, सॉरी हर एक्सपीरियंस इन एलिट इंस्टीट्यूशंस। इसका की आइडिया क्या है? की आइडिया है कि पर्सनल एक्सपीरियंस इज अ वैलिड वे टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर सोशल एंड कल्चरल इश्यूज। सो ऑटो इथनोग्राफी चैलेंजेस द आइडिया दैट ओनली ऑब्जेक्टिव डेटा इज वैलिड, कि हमको सर्वे करना होगा, हमको बहुत सारे इंटरव्यूज करने होंगे, हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस को भी बता सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च। इट सेज लिव्ड एक्सपीरियंस कैन रिवील डीप इनसाइट्स इनटू सोसाइटी लाइक डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी और जेंडर नॉर्म्स। जैसे अ मुस्लिम academic writing about being othered in university spaces after let's say communal rights, ऐसा हो सकता है। तो वो उनके व्यू पॉइंट से ही हमको पता चलेगा कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। ये किसी एक्सपेरिमेंट या किसी ऑब्जेक्टिव वे से, पॉजिटिविस्ट वे से अगर हम पढ़ेंगे तो वो इतना डीप इंसाइट हमको नहीं मिल पाएगा। इसका मेथड क्या है? मेथड है राइटिंग डीपली रिफ्लेक्टिव नैरेटिव्स अबाउट वंस ओन एक्सपीरियंसेस, लिंकिंग देम टू सोशल थीम्स जैसे कि कास्ट, जेंडर, ग्रीफ, आइडेंटिटी। तो द रिसर्चर टेल्स देयर स्टोरी इन अ नैरेटिव, इमोशनल एंड एनालिटिकल वे, शोइंग हाउ पर्सनल लाइफ इज शेप्ड बाय सोशल फोर्सेस। एग्जाम्पल, जैसे a student from rural Bihar, a student from rural Bihar writing about language shame in an English medium college and connecting it to class hierarchy. ये उस एक्सपीरियंस से ही लिखा जा सकता है। या फिर कोविड के बाद बहुत सारे लोग अपने, अनफॉर्चुनेटली दे लॉस देयर पेरेंट्स, सो नरेटिंग ग्रीफ आफ्टर लूजिंग अ पेरेंट ड्यूरिंग कोविड एंड कनेक्टिंग इट टू हेल्थ केयर इनइक्वालिटीज। हर व्यक्ति को का कोविड एक्सपीरियंस सेम नहीं रहा है बिकॉज ऑफ देयर ओन सोसाइटल पोजीशंस। ये ट्रुथ है, ये सच है। तो कैसे वो अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं एंड कनेक्टिंग इनटू द हेल्थ केयर इनइक्वालिटीज, कैसे उनको एक्सेस मिला या नहीं मिला इस चीज को। तो इन चीजों को बहुत डीपली नरेट किया जा सकता है अपने फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका यूज जो है इट इज कॉमन इन फेमिनिस्ट और क्वियर और पोस्ट कॉलोनियल रिसर्च। Autoethnography is widely used in critical fields where identity and marginality matter. It lets oppressed or invisible voices speak from their own position, not be studied by outsiders. तो इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है कि कोई इसको बाहर से पढ़ नहीं रहा है, हम अपना ही पोजीशन को खुद ही बयां कर रहे हैं। तो this gives voice to invisible voices. This gives voice to the people who have faced oppression. So feminist researchers sharing their personal struggles with motherhood, work life balance, patriarchy, ये खुद अपने फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से जब लिखेंगे तो उसमें वो डेप्थ आएगा, उसमें वो अपने पर्सनल और अपने चैलेंजेस, अपने इश्यूज को डीपली नरेट कर पाएंगे। For example, Supriya Singh's autoethnography on widowhood and identity, narrating the everyday, autoethnography and the personal sociology, economic and political weekly 2017. इसमें उन्होंने क्या बताया है? She shows, Supriya Singh shows how her personal everyday life intersects with larger sociological themes, bringing subjectivity एंड इमोशन इनटू एकेडमिक राइटिंग। तो इन्होंने अपने फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो उनका है ऑफ विडोहुड, उससे एक्सप्लेन किया है अपने एवरीडे को। तो ये इनका अपना खुद का नरेशन है ऑन दिस टॉपिक। उसी तरह से शाह आलम खान, इन्होंने बताया है मुस्लिम आइडेंटिटी इन एलीट स्पेसेस। इन्होंने लिखा बीइंग मुस्लिम इन एम्स।
So he writes from his own perspective as a Muslim academic navigating the elite academic and social institutions, highlighting the subtle exclusion. इस पे इन्होंने बताया. उसी तरह से याशिका दत्त का कमिंग आउट एज दलित इन 2019. So her memoir is a powerful ethnographic account of hiding her Dalit identity in elite spaces. तो ऑटो एथनोग्राफी आपको वो पोजीशन देता है कि इसमें रिसर्चर और रिसर्च अलग अलग लोग नहीं हैं. जिस पे रिसर्च किया जा रहा है सब्जेक्ट्स और जो रिसर्च कर रहे हैं वो एक ही हैं. तो जहाँ पर जो अपने ऑपरेशन की वजह से या फिर उनका अपना यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू इसकी वजह से वो अपने मार्जिनलाइज्ड हैं और उनकी बातों को कोई रख नहीं रहा है, तो ये उन सभी पॉइंट ऑफ व्यूज को दर्शाने का बहुत अच्छा नजरिया है, बहुत अच्छा जरिया है ऑटो एथनोग्राफी. फिर हम आते हैं नैरेटिव मेथडोलॉजी पे. नैरेटिव मेथडोलॉजी क्या है? तो अभी तक हमने कौन कौन सा देख लिया है. हमने ड्रामाटर्जिकल देख लिया है, उसके बाद हमने एथनोग्राफी देखा, ऑटो एथनोग्राफी देखा. अब हम आते हैं नैरेटिव पे. नैरेटिव मेथडोलॉजी क्या है? इट फोकसेस ऑन द स्टोरीज पीपल टेल अबाउट देयर लाइव्स. तो narrative methodology centers on people's life stories as a legitimate source of sociological knowledge. It believes people make sense of their world by telling stories. जैसे कि आपको अगर एक कोई वुमन माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम झारखंड, उनका लाइफ स्टोरी समझना है, तो हाउ शी नरेट्स हर स्ट्रगल shapes her understanding of her identity. How she narrates her struggle, that also shapes her understanding of her identity. तो की आइडिया क्या है यहाँ पे? की आइडिया है कि पीपल अंडरस्टैंड देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड फॉर्म देयर आइडेंटिटीज थ्रू स्टोरी टेलिंग. ह्यूमंस गिव मीनिंग टू लाइफ इवेंट्स बाय टेलिंग स्टोरीज अबाउट देम. इवन हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भी कई बार अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में स्टोरी टेलिंग के मेथड से ही बताते हैं कि कैसे बचपन में क्या करते थे, कैसे बड़े हुए, क्या क्या उनके चैलेंजेस आए. तो ह्यूमंस गिव मीनिंग टू लाइफ इवेंट्स by telling stories about them. These stories shape who they are, how they see themselves, and how they want to be seen. अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स. नाउ ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स narrating their journey through transition, highlighting trauma, rejection, and eventual acceptance. तो ये वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस को एक स्टोरी टेलिंग के मेथड से बता रहे हैं, और जब ये बता रहे हैं तब उस दौरान भी वो कैसे अपने आइडेंटिटी को देखते हैं, वो शेप हो रहा है. वो अपने स्टोरीज के जरिए दी स्टोरी शेप हु दे आर, हाउ दे सी देमसेल्व्स एंड हाउ दे वांट टू बी सीन. ये सभी कुछ एक साथ वहां पे स्टोरी टेलिंग के प्रोसेस के दौरान कंस्ट्रक्ट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, बन रहा है. इसका मेथड क्या है? इन डेप्थ इंटरव्यूज वेयर पीपल शेयर लाइफ स्टोरीज. द रिसर्चर स्टडीज हाउ द स्टोरी इज टोल्ड. ना केवल क्या बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, उस पर भी फोकस है. व्हाट इज एम्फसाइज्ड एंड व्हाई. क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है. बहुत सारे लेवल पे, बहुत सारे लेयर्स पे इसको समझने का प्रयास किया था, इसलिए इसको इन डेप्थ इंटरव्यू कहा जा रहा है. सो दिस मेथड गोज जस्ट बियॉन्ड फैक्ट्स. इट लुक्स एट हाउ पीपल टेल देयर स्टोरीज, व्हाट दे हाईलाइट और ओमिट, एंड व्हाट दैट रिवील्स अबाउट देयर सोशल वर्ल्ड एंड सेल्फ परसेप्शन. उन सब चीजों को देखा जा रहा है. जैसे मान लीजिए कोई ट्राइबल स्टूडेंट है, तो दे में हाईलाइट, लेट्स से एक एग्जांपल है, अ ट्राइबल स्टूडेंट में हाईलाइट हर मदर्स रोल इन हर एजुकेशन, डाउन प्लेइंग स्टेट सपोर्ट, शोइंग हाउ फैमिली इज सीन एज द रियल सपोर्ट सिस्टम. तो जो उनका अपना लाइफ का स्टोरी रहा है उस हिसाब से यदि वो बताते हैं और उसमें उनके मदर का रोल रहा है एजुकेशन में, तो वो उसको हाईलाइट करें कि बाकी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया बट मदर ने किया. तो ये उनकी अपनी एकदम ज्यादती स्टोरी है. इसको नैरेटिव मेथडोलॉजी में इन डेप्थ इंटरव्यू से समझा जाता है. इट इज वेरी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग concepts of trauma, migration, gender identity. So narrative methods are best when studying deeply personal and emotional experiences, especially those not captured by surveys or statistics. Of course, ये जो concepts हैं trauma के या माइग्रेशन के या जेंडर आइडेंटिटी के, ये सर्वे स्टैटिस्टिक्स से तो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे ही आप देख पाएंगे. जैसे मान लीजिए स्टोरीज ऑफ पार्टीशन सर्वाइवर्स.
टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कहाँ कोई स्टैटिस्टिक्स या सर्वे कवर कर सकता है? इसके लिए आपको ये इन डेप्थ लेवल के जो मेथडोलॉजी है इन्हीं के थ्रू उन चीज़ों को समझा जा सकता है। एक एग्जाम्पल है लाइफ नैरेटिव्स ऑफ हिजरा कम्युनिटीज। तो गायत्री रेड्डी उन्होंने लिखा है with respect to sex negotiating hijra identity in south india 2005. It is based on the narratives of hijra individuals in hyderabad. तो LGBTQ plus experiences often remain invisible or stereotyped. So narrative methods यहाँ पर they help bring the authentic self representations into sociology. तो गायत्री रेड्डी जो है इन्होंने शी कंडक्टेड इन डेप्थ नैरेटिव इंटरव्यूज विद द हिजरा इंडिविजुअल्स इन हैदराबाद टू अंडरस्टैंड हाउ दे नेगोशिएट देयर आइडेंटिटी, डिग्निटी, सोशल बिलोंगिंग, और उसको उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। इसके बाद हम आते हैं ग्राउंडेड थ्योरी पे। ये जो अदर नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी है इसमें ये लास्ट है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी ये सभी से अलग है। कैसे अलग है अभी हम लोग समझेंगे। देयर इज नो फिक्स्ड हाइपोथेसिस, लेट द नैरेटिव्स इट लेट्स द नैरेटिव टू गाइड द थ्योरी बिल्डिंग। यहाँ पे कोई थ्योरी से हम नहीं चल रहे हैं, नैरेटिव थ्योरी बिल्ड कर रहा है। सो अनलाइक द ट्रेडिशनल मेथड्स वेयर यू स्टार्ट विद अ थ्योरी, grounded theory starts with open-ended data like interviews and builds theory from scratch. तो इसमें पहले डेटा को लेट द डेटा स्पीक फर्स्ट और फिर उससे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थ्योरी के तरफ। तो इसके फाउंडर्स हैं बार्नी ग्लेसर एंड एंसेल्म स्ट्रॉस। Barney, Glaser, and Anselm Strauss. So these sociologists pioneered the grounded theory while studying dying hospital patients, letting real life accounts shape their framework. इन्होंने इसको इस तरह से पढ़ा था। तो ये करता क्या है, व्हाट इट डज, इट बिल्ड्स न्यू थ्योरी फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग रियल वर्ल्ड डेटा इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विथ अ थ्योरी। सो इट इज परफेक्ट फॉर स्टडिंग न्यू और अंडर रिसर्च टॉपिक्स। अगर बिल्कुल कोई नया जिस पे जाएगा या फिर ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है तो वहां पे थ्योरी बिल्डिंग तो इंस्टीट्यूशन मतलब थ्योरी बिल्डिंग तो हुआ नहीं है प्रॉपर से, तो इसीलिए वहां पर हम डेटा से आगे बढ़ते हैं, स्पेशली in fast changing societies. For example, researching how gig workers in India like Swiggy, Zomato delivery agents construct work meaning, stress and dignity. तो ये जो Swiggy, Zomato delivery ये प्लेटफॉर्म सब बहुत नए हैं, अभी उनके वहाँ जो काम कर रहे हैं उनसे संबंधित रिसर्च या उनसे संबंधित स्टडी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो यदि उसको समझना है तो हम इस ये ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं कि पहले हम डेटा से आगे बढ़ेंगे और वो जो नैरेटिव है वो गाइड करेगा थ्योरी बिल्डिंग को। तो जैसा शुरू में मैंने बताया कि आइडिया क्या है कि लेट द डेटा स्पीक एंड गाइड यू टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग पैटर्न। सो रिसर्चर्स शुड नॉट इम्पोज प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरीज, इंस्टेड दे ऑब्जर्व, लिसन एंड सी व्हाट थीम्स नेचुरली इमर्ज फ्रॉम द डेटा। इसका मेथड क्या होगा? The researcher collects data, for example interviews, identifies recurring themes and develops a theory based on those emerging patterns. So this involves coding interviews line by line, noting repeated ideas and then forming a conceptual framework. बहुत ये इंटेंस वर्क है, जैसे कि स्टडिंग द डेली रूटीन्स ऑफ विमेन डोमेस्टिक वर्कर्स and realizing a pattern of emotional labor, invisibility, leading to theory on informal care work. तो वैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यूज कलेक्ट किए, लाइन बाय लाइन उसको समझा और उसमें जो रिपीटेड आइडियाज हैं, जो मेन मेन आइडियाज हैं, उसको कोडिफाई किया और फिर आप एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे हैं। सो इट इज वेरी यूजफुल व्हेन देयर इज लिटिल एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन टॉपिक, जैसे स्टडिंग माइग्रेंट वुमेन्स इनफॉर्मल वर्क नेटवर्क्स। तो grounded theory is ideal when no prior theories exist or when old theories don't explain the new phenomena. जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया स्टडिंग माइग्रेंट वुमेन्स इनफॉर्मल वर्क नेटवर्क्स। तो वो कैसे जो माइग्रेंट वुमेन है वो कैसे अपना वर्क नेटवर्क क्रिएट करती हैं, क्योंकि उनका तो इनफॉर्मल है, दे आर आउटसाइड द फॉर्मल जॉब मार्केट्स। सो और उनका जॉब भी अनरेगुलेटेड है, तो वो किस तरह से अपना नेटवर्क क्रिएट करती हैं, अगर उसको स्टडी करना है तो क्योंकि इस पे ज़्यादा वर्क नहीं हुआ है तो आप पहले डेटा से थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे।
So grounded theory helps us explain precarious or invisible work in India, where standard job frameworks don't apply. तो हमने अभी तक जो है ये अदर नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज में ड्रामेटर्जिकल एथनोग्राफी, ऑटो एथनोग्राफी, नैरेटिव एंड फाइनली ग्राउंडेड थ्योरी को देख लिया है.